So hi everyone, welcome back to this lecture series for Odisha Public Service Commission, Odisha Administrative Services Examination. So this is the Odisha PCS जो है crash course, right? So in the Odisha PCS जो crash course है, in this crash course, what we are providing is that we are providing the recorded plus live batches, and 200 plus classes are being provided here. And this recorded batch is running from for the 7 days, 70 days, we all know, and the batch has already started, and this will continue up to 3rd of June, right? So this is the district profile, right? So this in this lecture we are going to cover the district profile of the Odisha Administrative Services, है ना? तो ये लेक्चर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिफोर द प्रीलिम्स, राइट? दिस इज गोइंग टू केटर टू एवरीथिंग रिलेटेड टू ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन, है ना? ओपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्लियर करना चाहते हो लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इसलिए परचम क्लासेस यहाँ पे लेके आया है ओडिशा पीएससी प्रीलिम्स 2026 क्रैश कोर्स. सो दिस क्रैश कोर्स इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर 70 डेज, एंड ये क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है. 25th ऑफ मार्च में ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, एंड दिस क्रैश कोर्स विल कंटिन्यू टिल 3rd ऑफ जून. तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स, राइट, टू क्लियर द एग्जाम्स. In this crash course you will be getting 200 plus classes, wherein you will be getting the recorded classes as well as live batches, and everything related to prelims like geography, history, polity, economics, right, Odisha GK part, the general mental ability, JS paper 1 and paper 2 का जो भी prelims में syllabus है पूरा यहाँ पे coverage आपको मिलेगा. तो इसीलिए ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो इस कम टाइम में आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये क्रैश कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? तो इस क्रैश कोर्स को एनरोल करने के लिए हमारे वेबसाइट में जाइए, राइट? अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कंटैक्ट आवर द टीम, है ना, इन दिस नंबर. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल इन वन स्टेट पीसीएस वन लाइनर ई बुक 2025 हैज़ ऑल्सो बिन लॉन्च्ड. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है. यहाँ पे आपको 16,000 प्लस वन लाइनर्स मिलेगा, एंड इसका वर्जन है इंग्लिश वर्जन. तो जितने भी इंडिया में स्टेट है, सभी स्टेट का पीसीएस में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर्मेट में आपको मिलेगा, राइट? सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मिलेगा. तो इसीलिए ये ऑल इन वन स्टेट पीसीएस वन लाइनर इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. तो इन ऑर्डर टू अवेल दिस, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट दिस नंबर, एंड ऑल्सो you can go to our perchamclasses.in, right? So that is the thing. So apart from that, all in one state PSC prelims plus mains batch 2026 has also been launched at Percham classes. And if you are preparing from any of these states, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Rajasthan, West Bengal, Assam, Odisha, and Madhya Pradesh, then this all in one state PSC जो batch है, that is going to be important for all of you. And in this batch you'll be getting unlimited live classes, and apart from that, special add-ons will also be available. And this program is for the 1 year, but the validity of this program is lifetime, right? So if you avail this batch now, so you'll be getting the lifetime validity. So this is the most important part of this all-in-one state PCS batch. So here prelims plus mains, both things will be covered. So if you want to avail this batch, you can contact this number and our support team as well. तो let us start with the district profile. तो previously मैंने करा दिया जो introductory part है, ओपीसी का पैटर्न्स है, पीवाईक्यू का जो एनालिसिस है, मैंने सब चीज़ बता दिया है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, राइट? तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स में हम ओडिशा में डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है ना, उसका प्रोफाइल्स है, वो सब डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ओडिशा है ना, एज वी ऑल नो, इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट, राइट? एंड दिस इज divided into 30 districts. Odisha has how many districts? It has the 30, right? It has 30 districts, and these districts, this function as a primary units for the governance, है ना, administration in the states. So Odisha में 30 district है ना, and you can see here, this is the map of Odisha, है ना. This is surrounded by Andhra Pradesh here, West Bengal is here, right, in this side. There is Jharkhand, Chhattisgarh, है ना, Andhra Pradesh, ठीक है, and here the Bay of Bengal, right? So Odisha is surrounded by these areas. For better coordination and administrative efficiency, है ना, district again has been grouped into 3 revenue divisions, right? तो देखो ओडिशा में ना ऐसे किया गया है, 30 डिस्ट्रिक्ट को ना, 30 जो डिस्ट्रिक्ट है, राइट, 30 डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रुप किया गया है एज अ रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू डिविजन्स में ग्रुप किया गया है, राइट? रेवेन्यू डिविजन्स में ग्रुप किया गया है 30 डिस्ट्रिक्ट्स को, राइट? तो कितना रेवेन्यू डिविजन्स है टोटल? 3 रेवेन्यू डिविजन्स है,
right? So that is the thing that you should be knowing the first thing, right? Now एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अगर का बात करेंगे तो उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, राइट? एंड द स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 रेवेन्यू डिविजन्स, मैंने बता दिया है ना, 30 डिस्ट्रिक्ट्स। एंड जो है यहाँ पे अगर बात करोगे तो डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 58 सब डिविजन्स, है ना। तो यहाँ पे ना 58 सब डिविजन है आपको, राइट? तो 30 डिस्ट्रिक्ट हुआ, है ना, 30 डिस्ट्रिक्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे कितना सब डिविजन्स है, राइट? 58 सब डिविजन्स है ना। 58 क्या है, ये सब डिवीजन है, राइट? सब डिवीजन इज 58, है ना। एंड उसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 है रेवेन्यू डिविजन्स, राइट? 3 रेवेन्यू डिवीजन है। एंड जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 300 17 सब तहसील्स, जो सब डिवीजन में भी अगर फर्दर डिवीजन देखेंगे तो यहाँ पे 370 जो है तहसील्स में डिवाइडेड है, राइट? तहसील्स आपको आना है, तहसील जो ब्लॉक लेवल में होता है ना। ये 370 तहसील्स है एंड 314 जो है ब्लॉक्स है यहाँ पे, राइट? 314 ब्लॉक्स, ठीक है। तो कितना ब्लॉक्स है, 314 ब्लॉक्स है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको जानना है, मैंने बता दिया था, है ना। यहाँ से भी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से उड़ीसा स्पेसिफिक जो भी पूछा जा सकता है, इट कैन बी एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो आपको जानना है ये। एंड अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ईच रेवेन्यू डिवीजन इज हेडेड बाय रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर। तो ये जो रेवेन्यू जो डिवीजन है, रेवेन्यू डिवीजन है, ये कौन हेड करते हैं? दिस इज हेडेड बाय हुम? दिस इज हेडेड बाय who heads this revenue divisional commissioner, right? This is headed by revenue divisional commissioner, right? तो इनका ये है, ये आईएएस भी होता है, राइट? डिविजनल कमिश्नर होता है, ये आईएएस लेवल का ऑफिसर होते हैं, राइट? एंड वो जस्ट सीनियर ऑफिसर इन आईएएस, ये आईएएस होता है, आईएएस का सीनियर ऑफिसर होता है। एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेज्ड बाय कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज यू ऑल नो। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, यहाँ पे कलेक्टर होता है, राइट? कलेक्टर होता है। तो इनफैक्ट जो रेवेन्यू डिवीजन है, रेवेन्यू डिवीजन डिस्ट्रिक्ट से ऊपर होता है ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो कहीं जा रहा है, लेकिन रेवेन्यू से भी ऊपर जो है यहाँ पे रेवेन्यू, जो डिस्ट्रिक्ट से भी ऊपर रेवेन्यू डिवीजन है ना। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये हेड करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। एंड जो रेवेन्यू कलेक्शन एंड जो है ओवरऑल गवर्नेंस में ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। अगर लॉ एंड ऑर्डर का बात करेंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट में जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मैनेज करता है, राइट? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मैनेज करता है, जो जनरली आईपीएस से होता है, लेकिन स्टेट से भी प्रमोट होके वो हो सकता है ना। सब डिविजन्स आर गवर्न बाय सब कलेक्टर्स, तो यहाँ पे सब कलेक्टर्स होता है ना। और तहसील्स आर मैनेज बाय तहसीलदार, राइट? तो आपको ये हायरार्की जानना है ना। तो देखो, ऊपर में जो है सबसे ज़्यादा अगर हायरार्की देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर होगा, है ना। रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर, राइट? डिविजनल कमिश्नर होंगे, है ना, टॉप में, क्योंकि ये डिविजन्स देखना है, 3 जो डिविजन्स है उसको देखता है ये, है ना। उसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट जो है मजिस्ट्रेट मिलेगा, राइट? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेसिकली ये कौन होता है? डीएम होता है ना, डीएम होता है। एंड ये कितना 30 डिस्ट्रिक्ट को देखता है, राइट? उसके नीचे भी अगर आओगे आप तो उसके नीचे आपको, अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखोगे तो यहाँ पे और एक है ऑफिशियल सुपरिंटेंडेंट पुलिस, एसपी, ये लॉ एंड ऑर्डर देखता है ना। अगर उसके भी नीचे आएंगे तो तहसीलदार आपको मिलेगा, तहसील, है ना, तहसील। और ब्लॉक में तहसीलदार, यहाँ पे तहसीलदार आपको मिलेगा, तहसीलदार, राइट? तहसीलदार, ठीक है। ब्लॉक लेवल में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ये सब मिलेगा। एंड कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड जो आईपीएस का ऑफिसर होता है, सुपरिंटेंडेंट पुलिस, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन मिलकर करते हैं। एंड सब डिविजन्स, है ना, ईच डिस्ट्रिक्ट इज अगेन सेपरेटेड इनटू सब डिविजन्स। यहाँ पे सब कलेक्टर हेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे क्या आएगा, जो है सब कलेक्टर हेड करेगा, है ना, सब कलेक्टर होता है। इसके बाद सब डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील्स, है ना, तहसील्स हेडेड बाय तहसीलदार। Odisha has 3 divisions, 30 districts, 58 सब डिविजन्स, है ना। 58 सब डिविजन्स है, यहाँ पे याद रखना है आपको, 58 सब डिविजन्स है। एंड 317 यहाँ पे तहसील्स है एंड 314 ब्लॉक्स है, राइट? ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा, राइट? काम में आएगा बाद में। तो ये सब है उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मयूरभंज है, जो वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है ना, मयूरभंज है, वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है। बालासोर है यहाँ पे, है ना, वो भी वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। यहाँ पे भद्रक है ना, भद्रक है। केंद्रापड़ा है, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कोस्टल है ये सब है ना। जग यू नो जग सिंहपुर, राइट, जगदीश सिंहपुर पुरी है यहाँ पे। खोर्धा है, राइट, खोर्धा है यहाँ पे। भुवनेश्वर, यू कैन सी द कैपिटल ऑफ ओडिशा, राइट। कटक है यहाँ पे। जयपुर है ना। धेनकनाल डिस्ट्रिक्ट, राइट, धेनकनाल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, है ना। नया ग्रह है ना, गंजम है यहाँ पे। गजापति है, ठीक है, गजापति है। रायगढ़ है। कोरापुत है, मलकानगिरी है, राइट, मलकानगिरी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हियर यू विल फाइंड दैट कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, है ना। कंधामल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। अंगूल है ना। अंगूल है यहाँ पे। बौद्ध है ना। सुब्रानपुर है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स डिस्ट्रिक्ट्स शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू, राइट। मैप आप याद रख लीजिएगा। बालांगीर है यहाँ पे। नौपाड़ा है ना। एंड नवरंगपुर है, नवरंगपुर, राइट, नवरंगपुर है यहाँ पे। बारगढ़ है यहाँ पे। संबलपुर राइट, संबलपुर में संबलपुर यूनिवर्सिटी है। रिसेंटली मैंने वहीं से इनफैक्ट पढ़ाई किया था, है ना। तो मेरा मेरा जो पीएचडी लेवल का स्टडी है संबलपुर से हुआ था। एंड यहाँ पे देवगढ़ है, राइट। मैं संबलपुर में वहाँ पे जाता रहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं उड़ीसा से ना खुद को लिंक करता हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम काम किया है एंड उड़ीसा, राइट, इज़ वेरी डियर टू मी। एंड देवगढ़ है यहाँ पे। केंदुआझार है ना। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट शुड बी नोन टू यू। हम डिटेल्स में उसको डिस्कस भी करेंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर रेवेन्यू डिविजन्स का बात करेंगे, राइट, रेवेन्यू डिविजन्स ऑफ ओडिशा, तो नॉर्दर्न डिवीजन है, सेंट्रल डिवीजन एंड सदर्न डिवीजन, ठीक है। तो ये 3 डिवीजन है, आपको जानना है। एक है नॉर्दर्न डिवीजन, है ना, सेंट्रल डिवीजन एंड सदर्न डिवीजन। तो देखो यहाँ पे जो तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू डिविजन्स का जो बात करेंगे तो नॉर्दर्न डिवीजन में है ना, नॉर्दर्न डिवीजन इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंगुल इंक्लूड होता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होता है। यहाँ पे जो अंगुल है ये नॉर्दर्न डिवीजन में आता है, राइट। उसके बाद आता है बलांगीर आता है, राइट। सो बलांगीर यहाँ पे कहाँ पे है, बलांगीर आता है, ठीक है। तो बलांगीर यू कैन सी हियर, है ना। बलांगीर, वेयर इज बलांगीर, राइट। तो बलांगीर, लेट मी चेक द बलांगीर। तो यू कैन सी हियर अंगूल है ना, अंगूल है यहाँ पे। एंड जो बलांगीर है यहाँ पे, राइट। सो बलांगीर इंक्लूड होता है इसमें। देवगढ़ है, धेनकनाल है, राइट। तो यू कैन सी हियर देवगढ़, राइट। सो देवगढ़ है एंड धेनकनाल है। धेनकनाल, यू कैन सी हियर धेनकनाल है यहाँ पे, है ना। एंड यू कैन सी द देवगढ़, है ना, देवरागढ़ भी है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न डिवीजन। झारसुगड़ा है, केंदुआझार है, राइट। सो झारसुगड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो झारसुगड़ा मैंने दिखा दिया था यहाँ पे मैप में। झारसुगड़ा कहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे इस मैप में झारसुगड़ा नहीं है ना। झारसुगड़ा यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे है, राइट। सो हियर इज द झारसुगड़ा, ठीक है। तो झारसुगड़ा इंक्लूडेड है। केंदुआझार इंक्लूडेड है ना। संबलपुर इंक्लूडेड है, राइट। सो संबलपुर यहाँ पे है ना। संबलपुर इंक्लूडेड है यहाँ पे। केंदुआझार इंक्लूडेड है, ठीक है। तो झारसुगड़ा यहाँ पे झारसुगड़ा दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज द झारसुगड़ा, राइट। सो झारसुगड़ा है यहाँ पे। एक एयरपोर्ट भी है छोटा सा, आप सभी को पता होगा। झारसुगड़ा हैज़ ए एयरपोर्ट, राइट। सो आई ऑफन फ्रीक्वेंटली ट्रैवल देयर, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट है ना सुबरानपुर, है ना, सुबर्णपुर है एंड सुंदरगढ़ है, राइट। सुंदरगढ़ है यहाँ पे, सुंदरगढ़ है, राइट। तो दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ, ये भी है सुबरानपुर, है ना। तो दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ व्हाट, दीज आर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न डिवीजन, ठीक है। सो नॉर्दर्न डिवीजन में ये सब आता है, आपको जानना है। एंड अगर सेंट्रल डिवीजन का जो बात करेंगे, तो जो ये नॉर्दर्न डिवीजन है ना, नॉर्दर्न डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे लोकेटेड है संबलपुर में, है ना। संबलपुर यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोकेटेड है, उसी वहीं पे नॉर्दर्न डिवीजन का हेडक्वार्टर है। सेंट्रल डिवीजन का अगर बात करेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कटक में, राइट। तो कटक आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना, कटक। तो ये सेंट्रल डिवीजन में आता है, तो इसको मैं दूसरा कलर से हाईलाइट करता हूँ। कटक ये सेंट्रल डिवीजन का इसके हेडक्वार्टर है यहाँ पे, राइट। सो ये हेडक्वार्टर है सेंट्रल डिवीजन का। ये नॉर्दर्न डिवीजन का हेडक्वार्टर है संबलपुर में, है ना। एंड ये डिवीजन में क्या क्या आता है, बालासोर आता है, भद्रक आता है, कटक आता है ना। तो बालासोर, भद्रक, कटक, ये सब इसी में आता है, ठीक है। तो आपको जानना है यहाँ पे बालासोर कहाँ पे है ना। जो है भद्रक कहाँ पे है, भद्रक है यहाँ पे। बालासोर आता है, ठीक है। कटक आता है, राइट। एंड आपको यहाँ पे जगदीश जगती सिंहपुर, राइट। सो जगती सिंहपुर, जजपुर, ये सब आएगा यहाँ पे। जगती सिंहपुर यहाँ पे, है ना। जजपुर भी यहीं पे आएगा, जजपुर है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा द केंद्रापड़ा, खोर्धा, है ना, खोर्धा, ठीक है। खोर्धा यहाँ पे है ना। केंद्रापाड़ा है, ठीक है। तो केंद्रापाड़ा भी यहाँ पे लोकेटेड है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मयूरभंज है, नयागढ़ है एंड पुरी, ठीक है। तो पुरी है यहाँ पे, मयूरभंज है ना, नयागढ़ है,
ठीक है, नयागढ़। तो ऑल दीज फॉल्स अंडर द ये सेंट्रल डिवीजन, ठीक है। तो सेंट्रल डिवीजन में ये सब लोकेटेड है, एरिया आपको जानना है, ठीक है। तो सेंट्रल डिवीजन में ऑल दीज थिंग्स कम्स हियर, है ना। एंड अगर जो सदर्न डिवीजन का बात करेंगे, सदर्न डिवीजन का जो बात करेंगे, तो यहाँ पे ये कहाँ पे लोकेटेड है, बरहामपुर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेंट्रल डिवीजन का बरहामपुर में लोकेटेड है हेडक्वार्टर, राइट। सो बरहामपुर आपको याद रखना है, बरहामपुर सेंट्रल डिवीजन का हेडक्वार्टर है। एंड सदर्न डिवीजन जो है कंप्राइजेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बौद्ध, गजापति, गंजम, है ना, कालाहांडी, जो भी बचा कुचा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बौद्ध है ना, बौद्ध है, कालाहांडी है ना, कालाहांडी, और क्या क्या था, गजापति, गंजम, गंजम, गजापति, कालाहांडी, है ना, गजापति है, गंजम है, राइट। एंड यहाँ पे देखोगे आपके कंडमल है, कोरापुट है, मलकानगिरी है, कोरापुट, रायगढ़ है ना, ये है, ठीक है, कन्नामल, नावपड़ा, नुआपाड़ा। तो ऑल दीज फॉल्स अंडर द सदर्न डिवीजन, ठीक है। तो आपको जानना है कैसे डिवाइडेड हुआ है ना। तो 3 डिवीजन रेवेन्यू डिवीजन है, इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, एंड इसका जो है कौन कौन डिस्ट्रिक्ट इसमें फॉल करता है आपको याद रखना है, रेवेन्यू डिवीजन, है ना। तो अगर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में, है ना, व्हेन ओडिशा वाज फॉर्म्ड, है ना, इट वाज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट प्रोविंस ऑन 1 अप्रैल 1936। मैंने बता दिया था यहाँ पे, है ना। ओडिशा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ऑर्डर जारी किया था, उसके तहत ये बनाया गया था, ठीक है। एंड इट इनिशियली हैड 6 डिस्ट्रिक्ट। शुरू में इसका ना 6 डिस्ट्रिक्ट था, नेमली कटक था, यहाँ पे पुरी था, बालासोर था, संबलपुर, कोरापुट एंड गंजम। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट ही हुआ करता था इनिशियली, अगर हिस्ट्री हम देखेंगे, ठीक है। तो नाम क्या क्या आपको याद रखना है, शुरू में जो है उड़ीसा का जो फर्स्ट 6 डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, एक है कटक, पुरी, बालासोर, संबलपुर, कोरापुट एंड गंजम, है ना। तो ये 5 6 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या हुआ, आफ्टर द इंडिपेंडेंस 7 डिस्ट्रिक्ट्स वर एडेड। तो बाद में क्या हुआ, 7 डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया, तो 6 प्लस, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6, राइट। तो देखो 6 प्लस 7 हुआ, कितना हुआ, 13 डिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे बालांगीर ऐड किया गया, धेनकनाल ऐड किया गया, केओंझार, है ना, कालाहांडी, मयूरभंज, फुलबनी, नाउ नोन एज द कंडमल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडमल डिस्ट्रिक्ट है ना, कंडमल डिस्ट्रिक्ट का पहला नाम क्या था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको नाम भी पूछा जा सकता है कि पहला जो कंडमल, इसका नाम क्या था, कंडमल डिस्ट्रिक्ट का, राइट। कंडमल डिस्ट्रिक्ट का पहला नाम था, दिस वाज नोन एज द फुलबनी, राइट। सो दिस वाज नोन एज फुलबनी, ठीक है। तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, फुलबनी, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको छोटा छोटा पॉइंट्स पूछा जा सकता है। एंड सुंदरगढ़ यहाँ पे जो है बाद में आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऐड किया गया था, ठीक है। तो 13 हुआ। अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस इन 1993। तो अभी जो है ना, जो प्रेजेंट लेवल में इतना ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये 1993 में एक मेजर एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे चेंजेस हुआ उड़ीसा में, है ना, ड्यूरिंग विच द 17 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर एडेड, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में 6 था, उसके बाद कितना हुआ, 7 हुआ, राइट, आफ्टर द इंडिपेंडेंस 7, उसके बाद 17 हुआ, तो टोटल जाके कितना हुआ, 30 हुआ, राइट। तो ये 1936 में था, टाइमलाइन अगर देखेंगे तो ये 1936 में था, ये 7 आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 के टाइम में ऐड हुआ, 17 ये 1993 में ऐड किया गया, ठीक है। तो ऐसे टाइमलाइन जाता है यहाँ पे उड़ीसा का जो है डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशंस का, है ना। तो दिस इज द थिंग। तो प्रेजेंटली यहाँ पे 30 डिस्ट्रिक्ट है, राइट। सो ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स का एडिशन हुआ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे उड़ीसा का एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है ना। यहाँ पे बौद्ध है सदर्न डिवीजन में, है ना, ये सदर्न डिवीजन में बौद्ध आता है, कंधमाल आता है, राइट, गंजम आता है, गजापति आता है, रायगढ़ आता है ना, कालाहांडी आता है, नुआपाड़ा आता है, राइट, यहाँ पे है नो, नवरंगपुर आता है, कोरापुट आता है, मलकानगिरी आता है। सो ये सदर्न डिवीजन में है। अगर आप यहाँ पे सेंट्रल डिवीजन में जाओगे तो यहाँ पे नयागढ़ है, पुरी है ना, खोर्धा है, जगदीशपुर है, यहाँ पे कटक है ना, केंद्रापड़ा है, जजपुर है, धेनकनाल है ना, भद्रक है। एंड यहाँ पे आपको ये मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, एंड ये मलकानगिरी मिलेगा, राइट। सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने धेनकनाल डिस्ट्रिक्ट सुने हो, जहाँ पर मैं जब भी धेनकनाल डिस्ट्रिक्ट का मुझे याद आता है ना, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ याद आता है। तो आपने सुना होगा उड़ीसा में ना, उड़ीसा में पहले चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका नाम है प्रदीप कुमार जेना, है ना। तो काफ़ी प्रचलित नाम है पूरा इंडिया में। तो आईएएस प्रदीप कुमार जेना, शायद सब अगर आप ओपीएससी के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो तो उनका नाम आपने सुने होंगे, आईएएस प्रदीप कुमार जेना, राइट, प्रदीप कुमार जेना, राइट। he was the he is called the cyclone savior, right. He is the cyclone savior.
साइक्लोन सेवियर आईएएस ऑफिसर माना जाता है उसको, क्योंकि उन्होंने ना डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा काम रोल प्ले किया है उड़ीसा में। उड़ीसा आज डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 स्टेट है बिकॉज ऑफ हिम, है ना। तो प्रदीप कुमार जेना, ये ढेनकनाल डिस्ट्रिक्ट से आते थे वो, है ना, उनका जो नेटिव प्लेस था यहाँ पे है, मैंने ये चीज़ सुना था। एंड नाउ की डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्स अगर बात करेंगे तो मयूरभंज इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो अगर एरिया का बात करेंगे तो यहाँ पे मयूरभंज लार्जेस्ट है एंड स्मॉलेस्ट जगदीशपुर है, राइट। सो जगदीशपुर यहाँ का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जगदीशपुर यहाँ पे। एंड जो है यहाँ का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, राइट, आपको नाम याद रखना है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गंजम हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग ऑल डिस्ट्रिक्ट। सो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट क्या है, गंजम है, राइट। गंजम इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, वेयरएज दियोगढ़ इज द लोएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपको ये सब स्टैटिस्टिक्स बेसिक फैक्ट है, आपको याद रखना है। गंजम हाईएस्ट पॉपुलेशन, दियोगढ़ लोएस्ट पॉपुलेशन, मयूरभंज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, है ना। जगदीशपुर जो है जगदीश सिंहपुर बेसिकली स्मॉलेस्ट है। एंड कैपिटल सिटी यहाँ पे भुवनेश्वर है ना, ये खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, खोर्धा में, राइट। एंड अगर डिस्ट्रिक्ट लिस्ट का बात करेंगे, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट लिस्ट का अगर बात करेंगे तो ये जो है दिस इज द लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, है ना। तो यहाँ पे अंगुल है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट बेसिकली इसका हेडक्वार्टर अंगुल में ही है ना। एंड ये 1 अप्रैल 1993 में फॉर्म हुआ था, है ना। थर्ड टाइम ये फॉर्म हुआ था, थर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रीसफल में फॉर्म हुआ था ये, ठीक है। तो यहाँ इसका पॉपुलेशन इज अराउंड 1.2 मिलियन, है ना, 1.2 मिलियन के आसपास है। तो आपको याद रखना है 12 लाख के आसपास पॉपुलेशन है यहाँ पे। एरिया 6375 स्क्वायर किलोमीटर है। डेंसिटी 200 जो है यहाँ पे डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। बालांगीर है, बालांगीर बेसिकली बालांगीर ही है इसका हेडक्वार्टर भी, है ना। 1949 में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है, 1949 में। यहाँ इसका पॉपुलेशन अराउंड 16 लाख के आसपास है, राइट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। एंड यहाँ पे जो है 6700 ये इतना इसका एरिया है, 6575, 251 स्क्वायर इसका डेंसिटी है। अगर बालासोर का बात करेंगे तो इसका बालासोर ही है इसका हेडक्वार्टर, राइट। एंड 23 अक्टूबर ये 1828 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, बहुत पहले ये फॉर्म हुआ था। एंड ये इसमें 23 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, ये है इसका जो है एरिया। एंड ये डेंसिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये ब्लू में, है ना। तो यहाँ पे 638 है, राइट। एंड अगर आप बारगढ़ का बात करेंगे तो बारगढ़ यहाँ पे इसका भी हेडक्वार्टर बारगढ़ ही है ना। ये 1993 में फॉर्म हुआ था, 14 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, 5000 इसका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, 254 इसका जो है डेंसिटी है। भद्रक का बात करेंगे तो भद्रक में ही इसका हेडक्वार्टर 1993 में फॉर्म हुआ था, 15 लाख पॉपुलेशन है। इसका एरिया इतना है, 601 इसका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी छोड़ा जाता है। बौद्ध डिस्ट्रिक्ट है, बौद्ध में भी बौद्ध ही है इसका हेडक्वार्टर, है ना। 1994 में फॉर्म हुआ था, 4 लाख के आसपास पॉपुलेशन है ना, राइट। आपको यहाँ पे जानना है। एंड थर्ड ये इसका जो है एरिया इतना है। एरिया के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ना आपको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया बस देख लीजिएगा, आपको एरिया का ये नंबर नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा कम है, 128 है। कटक का बात करेंगे तो 1828 में फॉर्म हुआ था ये, है ना। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है यहाँ पे कटक में अराउंड 26 लाख के आसपास है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है कटक में, आप देखोगे यहाँ पे, है ना। तो आपको यहाँ पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा कटक में, ठीक है। एंड देवागढ़ जो आप देख रहे हो, देवागढ़ में भी यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर देवागढ़ में ही लोकेटेड है, 1994 में फॉर्म हुआ था, है ना। पॉपुलेशन आपको यहाँ पे 3,12,000 31 लाख के आसपास मिलेगा आपको यहाँ पे पॉपुलेशन, सॉरी 3 लाख के आसपास पॉपुलेशन मिलेगा। 112 यहाँ का डेंसिटी। ढेनकनाल 1948 में फॉर्म हुआ था, पॉपुलेशन इतना है, 268 है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। गजापति है, गजापति का जो हेडक्वार्टर है पराल लेखामुडी, राइट, पराल लेखामुडी यहाँ का जो है इसका हेडक्वार्टर है गजापति का, आपको याद रखना है। तो दिस इज द थिंग दैट यू शुड बी नोइंग, राइट। सो गजापति आप मैंने बता दिया। परालेख मुंडी, राइट, परालेख मुंडी। तो ये 1998 में फॉर्म हुआ था, 1992 में फॉर्म हुआ था, 150 है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। जगदीश सिंहपुर इसका हेडक्वार्टर जगदीश सिंहपुर ही है, 1993 में फॉर्म हुआ था, 646 है इसका भी पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है। जसपुर ये 1993 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर जसपुर ही है इसका, है ना। एंड
इसका भी पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है ना। एंड झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा ही इसका हेडक्वार्टर 1994 में फॉर्म हुआ था। 278 है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। कालाहांडी है ना, कालाहांडी का क्या है, भावनीपटना, भावनीपटना इज द हेडक्वार्टर ऑफ कालाहांडी एंड 1948 में फॉर्म हुआ था। 199 है इसका, है ना। खंडामल जो है, खंडामल ये फूलबनी है इसका हेडक्वार्टर है। खंडामल का जो हेडक्वार्टर है फूलबनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया था फूलबनी जो है, फूलबनी किसका नाम था, खंडामाल का जो पहला नाम था फूलबनी, है ना। तो यही है, तो इसी चीज़ आपको याद रखना है। खंडामल 1994 में फॉर्म हुआ था। 96 है इसका, काफ़ी लो है पॉपुलेशन डेंसिटी। केंद्रपाड़ा, केंद्रपाड़ा में इसका हेडक्वार्टर, है ना। 545 है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। केंदुआझार, केंदुआझार में इसका हेडक्वार्टर 1948 में फॉर्म हुआ था। 217 है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। खोर्धा का, खोर्धा में है 800 है पॉपुलेशन डेंसिटी, काफ़ी ज़्यादा है खोर्धा का, है ना। खोर्धा का, क्योंकि खोर्धा में ही जो है यहाँ पे क्या है, कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे, किस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इसी में है, खोर्धा में, ठीक है। एंड कोरापुत, कोरापुत का हेडक्वार्टर कोरापुत है यहाँ पे, है ना। 157 है यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी। मलकानगिरी, मलकानगिरी हेडक्वार्टर है 1992 में फॉर्म हुआ था। कोरापुत 1936 में फॉर्म हुआ था। खोर्धा 1993 में फॉर्म हुआ था, है ना। 106 है मलकानगिरी का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी। मयूरभंज का जो है बारीपड़ा है हेडक्वार्टर, है ना, बारीपड़ा है इसका, 1949 में फॉर्म हुआ था। 242 है इसका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी। नवरंगपुर, राइट, सो ये नवरंगपुर है, इसका हेडक्वार्टर नवरंगपुर ही है। 1992 में फॉर्म हुआ था ये, है ना। 231 है। एंड जो नयागढ़ है, नयागढ़ में ही इसका हेडक्वार्टर, राइट, 1993 में ये फॉर्म हुआ था। 247 है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। नौपड़ा, नौपड़ा ही हेडक्वार्टर 1993 में ही फॉर्म हुआ था। 158 है इसका। पुरी, पुरी है इसका हेडक्वार्टर, है ना। पुरी आपको नाम सुने होंगे, काफ़ी फेमस है, पुरी बीच के लिए फेमस है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट पुरी इज ऑल्सो फेमस फॉर द यू नो द जगन्नाथपुरी टेम्पल, राइट, जगन्नाथपुरी के लिए फेमस है। 1828 में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। 557 इसका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है। रायगढ़ का, रायगढ़ ये हेडक्वार्टर 1992 में फॉर्म हुआ था। 137 है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। संबलपुर का, संबलपुर ये हेडक्वार्टर 155 है पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। सुवर्णपुर है, सुवर्णपुरी है इसका हेडक्वार्टर, राइट, इसका 261 है पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड जो है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ ये हेडक्वार्टर 1948 में फॉर्म हुआ था। 215 इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे संबलपुर है, दो देख रहे हो आप, संबलपुर 1905, 1905 में ही फॉर्म हुआ था संबलपुर, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें, राइट। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है ना। तो यहाँ पे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया मिलेगा, 9,712। और यहाँ पे आपको देखेगा मयूरभंज, मयूरभंज का काफ़ी बड़ा एरिया है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है, मयूरभंज है ना। मयूरभंज का एरिया बहुत बड़ा है, 10,000 के आसपास है। स्मॉलेस्ट जो है जगदीशपुर है ना, जगदीश सिंहपुर है यहाँ पे, है ना। इसका एरिया बस इतना है, 1759 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, है ना। प्रपोज डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ओडिशा में ना कुछ और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने का बात चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम 30 डिस्ट्रिक्ट, देखो वेस्ट बंगाल इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ पे अभी तक 23 डिस्ट्रिक्ट ही है। लेकिन देखो यहाँ पे जो है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा में इतना छोटा स्टेट भी के बावजूद 30 डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी और भी इसको बढ़ाने का बात चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कुछ प्रपोज डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है ना। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट को ब्रेक करके 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करने का बात चल रहा है यहाँ पे। वेस्ट मयूरभंज, है ना, रायरंगपुर, है ना, रायरंगपुर, वेस्ट मयूरभंज, रायरंगपुर, खिचुंग एंड करांजिया और पांचीपुर, राइट। सो ये जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में मयूरभंज को डिवाइड करने का बात चल रहा है, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू नीड टू नो दिस, द बालासोर जो डिस्ट्रिक्ट है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी डिवाइड करके यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करने का बात चल रहा है। नीलागिरी, जलेश्वर एंड सोरो। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ना आपको पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि बालासोर, द प्रपोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर नो डिवाइडेड, प्रपोज टू बी डिवाइडेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या हो सकता है ना। तो ऐसे ऑप्शन में आ सकता है, आपको याद रखना है। जो सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ को बोनाल, रौरकेला, है ना, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करने का बात चल रहा है। वेदव्यास डिस्ट्रिक्ट, रौरकेला जो डिस्ट्रिक्ट है उसको वेदव्यास डिस्ट्रिक्ट नाम रखने का बात भी चल रहा है ना, सुंदरगढ़ को। जो केंदुझाड़ है, केंदुझाड़ को एक और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है, डिस्ट्रिक्ट जो प्रपोज नेम यहाँ पे जो है आनंदपुर जो है रखने का बात चल रहा है यहाँ पे।
बारगढ़ जो है, बारगढ़ पदमपुर है ना, बारगढ़ में पदमपुर, संबलपुर कुचिंदा है ना, कुचिंदा, संबलपुर में कुचिंदा, अंगुल में तालचर, पल्लाभद्रा एंड अथ मालिक है ना, अथ मालिक। तो ये जो है तालचर, पालचंद्र एंड अथ मालिक, जो अंगुल है, अंगुल को डिवाइड करके ये 3 डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद चल रहा है। जो बालांगीर है, बालांगीर को डिवाइड कर रहा है करके तीतलागढ़ है ना, कंता बांजी एंड पटनागढ़, राइट। सो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करने का बात चल रहा है। जो कटक है, कटक को डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड करने का बात चल रहा है। एक है अथागढ़ एंड चंडीखोल है ना, अट्ठागढ़ एंड चंडीखोल, जो चंडीखोल है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करने का बात चल रहा है, कटक को डिवाइड करके। जो खोर्धा है, खोर्धा को जो है भुवनेश्वर बनाने का बात चल रहा है यहाँ पे। एंड जो कालाहंडी है, कालाहंडी को धर्मगढ़, कालाहंडी को धर्मगढ़, राइट। एंड जो खंडामल है, खंडामल को बालीगुड़ा, राइट, खन्नामल को बालीगुड़ा। एंड जो गंजम है, गंजम को जो है 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करने का बात चल रहा है। घुमुसर है ना, ऋषिकुल्या, घुमुसर, ऋषिकुल्या, बरहामपुर है ना, भजन नगर एंड जो है यहाँ पे क्या है, भजन नगर एंड कभी सुरभ नगर, राइट, कभी सुरभ नगर। तो ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिवाइड करने का बात चल रहा है, गंजम को है ना। पुरी को यहाँ पे नीमापाड़ा, राइट, पुरी को नीमापाड़ा करने का बात चल रहा है। एंड रायगढ़ में जो है गुनुपुर है ना, गुनुपुर यहाँ पे बनाने का बात चल रहा है। एंड कोरापुट में जयपुर, ठीक है। तो ये सब जो है प्रपोज डिस्ट्रिक्ट, आप नाम याद रखिएगा जरूर है ना, नाम पूछा जा सकता है आपको, ये सब नाम है ना। मयूरभंज में क्या है, उस मयूरभंज को डिवाइड करके क्या क्या बनाने का प्लान चल रहा है, बालासर को क्या बनाने का प्लान चल रहा है, सुंदरगढ़ को जो है डिवाइड करके क्या बनाने का प्लान चल रहा है। तो ये सब पूछा जाएगा, आप जरूर याद रखिएगा, है ना। नाउ अगर हम बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का अगर बात करेंगे तो ओडिशा इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड इनटू 30 डिस्ट्रिक्ट, मैंने बता दिया था। यहाँ पर 3 रेवेन्यू डिविजन्स है ना, रेवेन्यू डिविजन्स मैंने बता दिया था। सेंट्रल डिवीजन कटक में है, हेडक्वार्टर है। नदर्न डिवीजन का संबलपुर में है, सदर्न डिवीजन का बरहामपुर में है। रेवेन्यू डिविजन्स है ना, एफिशिएंट गवर्नेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में भी जानना है आपको, है ना, क्योंकि ओडिशा में डिजास्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ओडिशा कोस्टल एक स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे साइक्लोन्स आता है, कई सारा जो डिजास्टर्स आता रहता है। तो इसके लिए ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओडिशा इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स होता है, फ्लड्स होता है, ड्राउट्स होता है ना। तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश किया गया है ना। आपको नेशनल लेवल में पता ही है, एनडीए में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये नेशनल डिजास्टर है ना मैनेजमेंट एक्ट द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो है फोर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, तो कई सारा बॉडीज है इसके अंदर, है ना। तो सिमिलरली उड़ीसा में अपना ही डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका जो की फीचर्स है, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज इन इंडिया, है ना। उड़ीसा इज वन ऑफ द पायोनियर स्टेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, मैंने बता दिया था। प्रदीप कुमार जेना सर जो है उनका नाम काफ़ी प्रचलित है। एंड ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस एंड जो है डिजास्टर मिटिगेशन, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ओडिशा बेसिकली क्या है, दिस इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, है ना, जीरो कैजुअलिटी साइक्लोन मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। तो इनका अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि ओडिशा चाहता है कि जो है इसका अप्रोच है कि जो साइक्लोन्स है उससे कैजुअलिटी जीरो होना चाहिए ओडिशा में, है ना, इसका ये है। एंड इसका फंक्शंस को है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इवैक्यूएशन प्लानिंग एंड रिलीफ ऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम कराना, है ना, एनडीएमए के साथ कोऑर्डिनेशन कराना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये सब इसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ना आपको ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो आपको 4-5 स्टेटमेंट दे सकता है, उसका फंक्शंस भी रह सकता है उसमें, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। एंड अगर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे और ज़्यादा डीप में, है ना, तो देखो अंगुल जो है, अंगुल नदर्न डिवीजन में पड़ता है, ये नदर्न डिवीजन में पड़ता है ना। दिस इज नोन एज द इंडस्ट्रियल हब ऑफ ओडिशा, ठीक है, इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे इंडस्ट्रीज लाइक नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, है ना। तो ये सब जो बड़े कंपनीज हैं, महारत्ना, नवरत्ना एटसेट्रा, ये सब यहाँ पे लोकेटेड है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना। रिच कोल रिजर्व है यहाँ पे, माइनिंग एक्टिविटीज़ भी होता है, कोल रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा है, माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है ना। मेजर रिवर्स यहाँ पे अगर देखोगे तो ब्रह्मणी, महानदी, राइट। सो दीज आर द मेजर रिवर्स इन द अंगुल,
ठीक है, तो ब्राह्मणी, महानदी एटसेट्रा। मेजर ट्राइब्स का अगर बात करेंगे तो पौड़ी भुआन है ना, भूयान यहाँ पे याद रखिएगा नाम, क्योंकि उड़ीसा में ना काफ़ी ज़्यादा ट्राइब यहाँ पे पाया जाता है, तो इसलिए आपको ट्राइब्स का जो नाम भी अच्छे से याद रखना है ना। तो यहाँ पे पौड़ी भूयान जो है मेजर ट्राइब है, एंड हो, ये दो ट्राइब काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंगुल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसमें अंगुल डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या रिवर फ्लो होता है, ब्राह्मणी एंड महानदी, राइट। सो ब्राह्मणी एंड महानदी फ्लोज थ्रू द अंगुल डिस्ट्रिक्ट। अगर बालासोर का बात करेंगे, ये सेंट्रल डिवीजन में पड़ता है ना, सेंट्रल डिवीजन में जो ये इस बालासोर किसके लिए फेमस है, बालासोर टेस्टिंग, अगर आप नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, डीआरडीओ से रिलेटेड आप पढ़ रहे होंगे, तो नेशनल करंट अफेयर्स जब पढ़ोगे तो वहाँ पे ना बालासोर टेस्टिंग रेंज, आईटीआर चंदीपुर आपने आपने सुना होगा, तो यहाँ पे ना मिसाइल टेस्टिंग होता है यहाँ पे बालासोर में, ठीक है। तो मिसाइल टेस्टिंग रेंज बालासोर में लोकेटेड है। मैरीटाइम ट्रेड एंड दिस इज नोन फॉर द मैरीटाइम ट्रेड एंड कोस्टल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है ना, तो बालासोर है। यहाँ पे मैंने मैप नहीं डाला क्या, तो यहाँ पे मैंने मैप डाल दिया था, तो इस मैप को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। तो ये मैप को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं डुप्लीकेट करके बड़ा ही कर देता हूँ, राइट। ठीक है, तो यू कैन सी हियर, राइट। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द बालासोर हियर, राइट। सो बालासोर कहाँ पे है, बालासोर बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, बालासोर यहाँ पे है ना, एक जो डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आपको बालासोर मिलेगा, ये है ना, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वो बालासोर है। यहाँ पे आईटीआर टेस्टिंग, आईटीआर चंदीपुर आपको याद रखना है, आईटीआर है ना, आईटीआर चंदीपुर, ठीक है, ये टेस्टिंग रेंज है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सुवर्ण रेखा फ्लो होता है, यहाँ पे सुवर्ण रेखा है ना, ये वेस्ट बंगाल में भी फ्लो होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, बूढ़ा बालंगा, ठीक है। सो बूढ़ा बालंगा इज अनदर इंपॉर्टेंट रोबोट, बूढ़ा बालंगा एंड सुवर्ण रेखा। सांथाल पाया जाता है यहाँ पे, कोल्हा भी पाया जाता है एंड हो, राइट। सांथाल, कोल्हा एंड हो आर द मेजर ट्राइब्स इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड बारागढ़, जो बारगढ़ है, बारगढ़ इज लोकेटेड इन नदर्न डिवीजन, है ना। दिस इज नोन एज द राइस बोल ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो राइस बोल ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। एंड ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, इंपॉर्टेंट ये हैंडलूम सेक्टर के लिए, राइट। तो यहाँ पे हैंडलूम सेक्टर काफ़ी डेवलप्ड है। एंड मेजर रिवर्स यहाँ पे महानदी है ना, महानदी है एंड जीरा आर द मेजर रिवर्स यहाँ पे बारगढ़, राइट, ठीक है। तो बारगढ़ में ये सब रिवर फ्लो होता है, ठीक है। तो बारगढ़ मैंने बता दिया। एंड यहाँ पे ये बारगढ़ का बात कर रहे हैं हम, है ना अभी। तो यहाँ पे जीरा एंड महानदी फ्लो होता है। एंड मेजर ट्राइब्स है यहाँ पे बिंजाल एंड सहारा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, तो ट्राइब्स ना डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट में बालासोर में सांथाल कोल्हा हो था, और यहाँ पे आए, यहाँ पे बिंजल सहारा था, है ना। और यहाँ पे पौड़ी भुयांता हो था अंगुल में, राइट। तो उड़ीसा में ना ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए चेंज होता रहता है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है ना। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डिस्कस इज कटक। कटक सेंट्रल डिवीजन में पड़ता है। दिस इज नोन एज द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया। कटक इज नोन एज द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो है सिल्वर फिलिग्री, है ना, जो ताराकासी वर्क है यहाँ पे पाया जाता है। सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, कटक है। यहाँ पे ताराकासी जो है ना, ताराकासी वर्क इसी से डिस्ट्रिक्ट से आता है। एंड दिस वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ ओडिशा का जो पहले जो है ना कैपिटल यही हुआ करता था, यही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। एंड यहाँ पे जो है दिस इज इंपॉर्टेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हब है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो उड़ीसा, जो कटक है ना, कटक कटक एंड जो भुवनेश्वर है, राइट, ये ट्विन सिटी की तरह डेवलप हुआ है। आप सभी को पता है उड़ीसा में, है ना, ट्विन सिटी की तरह डेवलप हुआ है कटक एंड भुवनेश्वर। एंड मेजर रिवर यहाँ पे इंद्रावती फ्लो होता है एंड नागवली, ठीक है। नागवली एंड इंद्रावती आर द मेजर रिवर्स विच इज फ्लोइंग इन द सॉरी, कालावांडी का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मेजर रिवर्स है कटक में, है ना, कटक में महानदी एंड कथा जोड़ी एंड महानदी यहाँ पे मेजर रिवर्स है। और यहाँ पे मेजर ट्राइब का अगर बात करेंगे तो मुंडा है, ओडाऊ, मुंडा एंड ओडाऊ आर द मेजर ट्राइब्स इन कटक, राइट, कटक, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे जो है बाकी चीज़ें का जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे तो गंजम है। यहाँ पे गंजम बेसिकली मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। दिस इज नोन एज द सिल्क सिटी, राइट। सो सिल्क सिटी यहाँ पे बरहामपुर में लोकेटेड है। सो बरहामपुर का जो है ना, बरहामपुर इज ऑल्सो नोन एज द सिल्क सिटी। बरहामपुर कहाँ पे है, गंजम में, है ना। मोस्ट
पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट मैंने बता दिया था ये। एंड यहाँ पे जो है रिवर फ्लो होता है रुसिकुलिया, बहुड़ा, है ना, रुसिकुड़ा रुसिकुलिया एंड बहुड़ा आपको जानना है, दो इंपॉर्टेंट रिवर है, राइट। तो आप याद रखिएगा सभी डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम, यूनिक नाम क्या है ना, उसका मेजर रिवर्स क्या है, एंड वहाँ पे जो ट्राइब्स है वो क्या पाया जाता है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे सौरा ट्राइब, परोजा ट्राइब एंड भूमिया ट्राइब गंजम में पाया जाता है ना। सौरा, आई एम रिपीटिंग द नेम, सौरा, परोजा एंड भूमिया ट्राइब आर फाउंड हियर इन द गंजम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सौरा, परोजा एंड भूमिया, एंड कटक में मुंडा एंड ओराव पाया जाता है, ठीक है। एंड कालाहांडी का अगर बात करेंगे, ये सदर्न डिवीजन में पड़ता है कालाहांडी ना, यहाँ पे बॉक्साइट रिजर्व पाया जाता है, ठीक है। एंड रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे है कालाहांडी में, है ना। एंड यहाँ पे कालाहांडी का अगर बात करोगे तो दिस इज द यहाँ पे इंद्रावती एंड नागवली पाया जाता है रिवर, राइट। सो कालाहांडी में इंद्रावती एंड नागवली है ना। तो कालाहांडी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो कालाहांडी यहाँ पे लोकेटेड है, इंद्रावती एंड नागवली फ्लो होता है यहाँ पे, है ना। एंड यहाँ पे कुटिया कोंड एंड भोटाडा, कुटिया कोंड एंड भोटाडा ट्राइब्स आर फाउंड हियर इन कालाहांडी, राइट। कुटिया कोंड एंड भोटाडा, राइट। एंड जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है खंडमल है, राइट। जो खंडमल बेसिकली सदर्न डिवीजन में लोकेटेड है खंडमल, राइट। सो खंडमल, दिस इज नोन एज द कॉफी एंड टर्मरिक कल्टिवेशन, नोन फॉर द कॉफी एंड टर्मरिक कल्टिवेशन। सो सभी डिस्ट्रिक्ट का ना एक एक फीचर है, कालाहांडी का बॉक्साइट रिजर्व है ना, कल्चरल हेरिटेज है। खंडमल का जो है कॉफी के लिए जाना जाता है यहाँ पे, दिस इज द कॉल्ड द कश्मीर ऑफ ओडिशा फॉर द प्लेजेंट क्लाइमेट, है ना। खंडमल में काफ़ी अच्छा वेदर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कश्मीर ऑफ ओडिशा, राइट। तो सभी डिस्ट्रिक्ट ना स्पेशल फीचर्स है, तो इसीलिए ना ओडिशा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, जो है स्टेट है, काफ़ी जो सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी अलग अलग है, रिच कल्चरल हेरिटेज आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। दिस इज नोन एज कल्चरल कश्मीर ऑफ ओडिशा। कॉफ़ी एंड टर्मरिक कल्टिवेशन होता है यहाँ पे। रुसिकुलिया एंड जो है सालून की रिवर यहाँ पे फ्लो होता है ना। मेजर ट्राइब यहाँ पे कोंड, कुटिया कोंड एंड डोंगारिया कोंड। कोंड का भी दो टाइप्स है ना, एक होता है कुटिया कोंड, दूसरा होता है डोंगारिया कोंड, राइट। तो ये दोनों ही यहाँ पे पाया जाता है, कुटिया एंड डोंगारिया कोंड, आपको जानना है, राइट। एंड बेसिकली अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे देखो गंजम, मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। गंजम सिल्क सिटी कहा जाता है, बोरामपुर, है ना। एंड जो सिल्वर सिटी कटक को कहा जाता है, राइट। एंड यहाँ पे जो है मिसाइल टेस्टिंग रेंज बालासोर में है, ठीक है। राइस बोल ऑफ ओडिशा किसको, बारगढ़ को कहा जाता है, बारगढ़ को, है ना। अंगुल, अनगुल ये नालको एंड एनटीसीपी से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। देखो सभी डिस्ट्रिक्ट का ना कुछ स्पेशलिटी है, ठीक है। इसीलिए आज ओडिशा इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। ओडिशा इज़ वन ऑफ द प्रोग्रेसिव स्टेट इन इंडिया, राइट। एंड यहाँ पे क्योंझार का अगर बात करेंगे, नदर्न डिवीजन में लोकेटेड है। लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व्स जो है ओडिशा में यहीं से पाया जाता है, ठीक है। तो होल्ड्स द लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व्स इन ओडिशा, राइट। अगर मेजर रिवर्स का बात करेंगे तो यहाँ पे बैतरानी है, राइट। सो बैतरानी इज द मेजर रिवर इन ओडिशा, राइट। क्योंझार में, राइट। ओडिशा का सबसे ज़्यादा आयरन और कहाँ पे पाया जाता है, क्योंझार में है। कौन से डिवीजन में, नॉर्दर्न डिवीजन में, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर ट्राइब्स यहाँ पे जुआंग है, भुआन है, सांताल, जुआंग, भुयान एंड सांताल, राइट। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट ट्राइब्स इन क्योंझार। नाउ नेक्स्ट इज द खोर्धा। खोर्धा ये सेंट्रल डिवीजन में पड़ता है। कंटेंट्स यहाँ पे जो है स्टेट कैपिटल, भुवनेश्वर का कैपिटल जो है यहीं पे लोकेटेड है, खोर्धा में, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज सिटी है यहाँ पे। आईटी सेक्टर, एडुकेशन सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन सभी यहाँ पे मिलेगा खोर्धा में। मेजर रिवर्स यहाँ पे क्या है, खखाई रिवर, है ना, कुआखाई, कुआखाई रिवर है, दया रिवर। कुआखाई एंड दया रिवर आर मेजर रिवर्स इन खोर्धा, आपको याद रखना है, कुआखाई एंड दया, राइट। कुआखर दया, आप याद रखिएगा, दया, इंस्पेक्टर दया, है ना। तो इंस्पेक्टर दया सोनी टीवी में जो है आता है हमारा, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड इंस्पेक्टर दया दरवाज़ा तोड़ो, तो उससे जो है ये आप याद रख सकते हो, दया, है ना, खोर्धा में लोकेटेड है। एंड जो है मेजर ट्राइब्स यहाँ पे सावरा है एंड मुंडा, सावरा एंड मुंडा आर द मेजर ट्राइब्स हियर, सावरा एंड मुंडा, है ना। नेक्स्ट इज द कोरापुत। कोरापुत ये सदर्न डिवीजन में लोकेटेड है। इंडस्ट्रियल यहाँ पे प्रेजेंस मिलता है। नालको जो है ना, नालको दिस इज ऑल्सो, ये कहाँ पे लोकेटेड है, दमनजोड़ी, है ना। कोरापुत में दमनजोड़ी है, वहाँ पे नालको है ना। हैल, राइट। हैल ये क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट। ये किसके लिए फेमस है, इंडिया में जो है ना, ध्रुव, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। हैल, अपार्ट फ्रॉम दैट हैल का और क्या क्या है,
राइट। हेल का कई सारा जो है जो कंपोनेंट्स है ना, हेलीकॉप्टर से वो इंडियन डिफेंस जो है प्रोक्योर करता है, डीआरडीओ प्रोक्योर करता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है यहाँ पे इसका भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रेजेंस है उड़ीसा में, कोरापुत में, राइट। ये सुनाबेड़ा में लोकेटेड है, राइट, आपको याद रखना होगा, राइट, ये पूछा जा सकता है। हेल कहाँ पे लोकेटेड है? सुनाबेड़ा में, कोरापुत में, सदर्न डिवीजन में, नालको दमन जोड़ी में लोकेटेड है ना। ये इंपॉर्टेंट ट्राइबल रीजन है यहाँ पे, क्योंकि कोरापुत में क्या पाया जाता है? परोजा ट्राइब पाया जाता है, गडाबा ट्राइब पाया जाता है, बोंडा ट्राइब पाया जाता है। परोजा, गडाबा एंड बोंडा ट्राइब्स आर फाउंड इन कोरापुत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है मेजर रिवर यहाँ पे कोलाब एंड इंद्रावती, कोलाब एंड इंद्रावती आर द मेजर रिवर इन द कोरापुत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कोरापुत डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। कोरापुत में क्या क्या? खोर्धा काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर खोर्धा में लोकेटेड है कोरापुत, है ना। कोरापुत में यहाँ पे हैल भी लोकेटेड है ना, हैल भी यहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ना। एंड नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे तो वो है मयूरभंज, ये सेंट्रल डिवीजन में लोकेटेड है, ठीक है। और भी कई सारा चीज़ें यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्योंझार, काला हांडी, हमने कश्मीर ऑफ ओडिशा डिस्कस कर दिया। मैं लास्ट में एक बार क्विकली रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, है ना, टाइम का भी क्रंच है। लेकिन मैं ना यहाँ पे देखो, ये दिस इज़ अ क्रैश कोर्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ें जो है डिटेल्स में डिस्कस करने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो देखो रायगढ़ जो है, रायगढ़ मैंने यहाँ पे पूरी हमने बात नहीं किया। कोरापुत, मयूरभंज का बात कर रहे थे, सेंट्रल डिवीजन में लोकेटेड है ना। मयूरभंज बेसिकली लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा बाई एरिया। अगर बात करेंगे, मैंने बता दिया था ये, है ना। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हम बायोस्फीयर रिजर्व जब कराएंगे उड़ीसा में, है ना, नेशनल पार्क, तो उसमें हम कवर करेंगे ये सब चीज़ें। मयूरभंज जो है यहाँ पे सेंट्रल डिवीजन में, सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे लोकेटेड है। मेजर रिवर का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बूढ़ा बालंगा, राइट, बूढ़ा बालंगा यहाँ पे मेजर रिवर है। यहाँ पे बैतरानी भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, राइट, बूढ़ा बालंगा एंड बैतरानी। मेजर ट्राइब्स आर सांथाल, कोल्हा एंड लोधा। सांथाल, कोल्हा एंड लोधा आर द मेजर ट्राइब्स हियर इन द मयूरभंज, ठीक है। तो आपको याद याद रखना होगा रिवर का नाम बैतरानी एंड बूढ़ा बालंगा, राइट। सब बीबी आप याद रखिए, बीबी मयूरभंज में लोकेटेड है, सेंट्रल डिवीजन में। सिमिलीपाल भी मयूरभंज में लोकेटेड है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज पुरी। पुरी ये सेंट्रल डिवीजन में पड़ता है, सेंट्रल डिवीजन में पड़ता है। फेमस फॉर जगन्नाथ पुरी टेम्पल, राइट। सो जय जगन्नाथ, राइट। तो जय जगन्नाथ जो है यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल हमारा, राइट, जगन्नाथ टेम्पल यहाँ पे पाया जाता है। एंड मेजर सेंटर फॉर टूरिज्म यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट है ना। मेजर रिवर यहाँ पे जो है भार्गवी रिवर यहाँ पे फ्लो होता है। दया रिवर यहाँ पे, दया रिवर भी यहीं से आके फ्लो होता है, जो भुवनेश्वर में वहाँ पे फ्लो, खोर्धा में फ्लो हो रहा था, है ना। मेजर ट्राइब जो है सौरा, सौरा ट्राइब यहाँ पे पाया जाता है, राइट। एंड तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट में बाद में दिखा दूंगा, है ना। रायगढ़ जो है, रायगढ़ ये सदर्न डिवीजन में आता है, राइट। पेपर एंड फेरो मैग्नीज इंडस्ट्री है। तो वेस्ट में जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा इज रिच फॉर द मिनरल्स रिसोर्सेस, है ना, रिवर्स, ट्राइब्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे उड़ीसा इज यहाँ पे पेपर एंड फेरो मैग्नीज इंडस्ट्रीज यहाँ पे पाया जाता है। मेजर रिवर का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वंशधारा, है ना, वंशधारा, वंशधारा रिवर है। नागावली रिवर भी यहाँ पे पाया जाता है। तो वंशधारा, नागावली रिवर्स यहाँ पे आपको जानना है। मेजर ट्राइब्स की अगर बात करेंगे तो लंजिया सावरा ट्राइब है ना, लंजिया सावरा ट्राइब एंड डोंगारिया कोंद, अगेन इंपॉर्टेंट ट्राइब, डोंगारिया कोंद, है ना। तो डंगारिया कोंद यहाँ पे पाया जाता है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। नाउ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाता है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, दिस इज नोन एज द स्टील सिटी, क्योंकि सुंदरबन में रौरकेला स्टील प्लांट है, ठीक है। तो इंडिया के ना इंडिपेंडेंस के बाद जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये रौरकेला स्टील प्लांट डेवलप हुआ था, राइट। सो रौरकेला स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये सुंदरगढ़ नॉर्दर्न डिवीजन में है उड़ीसा का, राइट। एंड यहाँ पे रिच मिनरल एंड एनर्जी इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज पाया जाता है। मेजर रिवर्स का अगर बात करेंगे तो ब्राह्मणी एंड इब, राइट। तो हम जब रिवर्स डिस्कस करेंगे तब ये सब चीज़ें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो महानदी एंड इब आर द ट्रू इंपॉर्टेंट रिवर्स इन द सुंदरगढ़, है ना। मेजर ट्राइब्स का बात करेंगे तो ओराव ट्राइब पाया जाता है यहाँ पे, मुंडा ट्राइब पाया जाता है एंड किसान ट्राइब, ओराव, मुंडा एंड किसान, राइट। तो क्विकली मैं अगेन मैप के थ्रू दिखा देता हूँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, है ना। यहाँ पे गजापति डिस्ट्रिक्ट है, गंजम डिस्ट्रिक्ट है ना, खोर्धा है ना, पुरी है, जगदीश सिंहपुर है, केंदोरा है, ठीक है। कौन कौन सी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। तो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड होता है? बालासोर है ना, भद्रक है, केंद्रपाड़ा है, जगदीश सिंहपुर है, पुरी है, राइट। यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना आप, दिस इज द चिलिका लेक, दिस इज द ब्रैकिश वाटर लगून, है ना, दिस इज द लकून चिलिका। तो आपको देखने को मिलेगा एशिया का लार्जेस्ट
ब्रैकिस वाटर लगून, चिलिका लेक, ठीक है। तो चिलिका लेक भी यहाँ पे है, राइट। चिलिका लेक ये खोर्धा डिस्ट्रिक्ट से करीब है, पूरी के डिस्ट्रिक्ट पास है, गंजम डिस्ट्रिक्ट का भी पास है यहाँ पे, गजापति है यहाँ पे, राइट। गजापति इज नॉट अ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो गंजम से जो ऊपर है ना, ये डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ से साउथ ये अरेंज करने के लिए भी आ सकता है आपको, राइट। तो हमने ये सब डिस्कस कर दिया यहाँ पे। कोरापुट यहाँ पे मेजर ट्राइबल हब है, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस्ड, है ना। नाउ तो जो जी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का जो इम्पोर्टेंट की फीचर्स भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे ना जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स है, जीआई टैग्स, उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हम देखते हैं। तो जीआई टैग है ना, इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट क्या है? इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट, फर्स्ट ये है दार्जिलिंग टी, है ना। दार्जिलिंग टी इज द फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ उड़ीसा, इंडिया, है ना। ये 1999 में मिला था, राइट। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के थ्रू जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। एंड जीआई टैग के थ्रू बेसिकली क्या होता है ना, कोई पर्टिकुलर एरिया का जो यूनिक फूड है, यूनिक जो आइटम्स है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया का, जैसे कि दार्जिलिंग के लिए फेमस था दार्जिलिंग टी, है ना। दार्जिलिंग टी फेमस था, दार्जिलिंग टी, ठीक है। एंड जो है बंगाल के लिए रसगुल्ला, उड़ीसा के लिए भी उड़ीसा का वेराइटी का रसगुल्ला, है ना। एंड पोचामपल्ली साड़ी। तो सब एरिया का जो है अपना अपना कुछ वेराइटीज होता है, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक जो स्पेशल चीज़ें होता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इसी एरिया से ये बिलोंग करता है ना, इसका यूनिक आइडेंटिटी है, तो इसीलिए उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग, राइट। तो जीआई टैग बेसिकली, है ना, उड़ीसा में अप्रोक्सीमेटली 25 जीआई टैग है ना। उड़ीसा हैज अप्रोक्सीमेटली 25 जीआई टैग्स एज ऑफ 24-25, है ना। दीज इंक्लूड्स द प्रोडक्ट फ्रॉम फूड, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, यू नो, एग्रीकल्चर सेक्टर, कई सारा चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो फूड प्रोडक्ट अगर बात करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखो स्टूडेंट्स कि जो जीआई टैग है ना, क्या क्या है आपको याद रखना है ना। तो केंद्रापड़ा रासाबली, है ना, केंद्रापड़ा रासाबली बेसिकली ये फूड प्रोडक्ट है, रासाबली केंद्रापड़ा। तो वहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे टेस्ट कर पाओगे केंद्रापड़ा रासाबली, ये केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना। तो केंद्रापड़ा से केंद्रापड़ा रासाबली, इजी टू रिमेंबर ये, लेकिन क्या है, फूड प्रोडक्ट है ना। उड़ीसा रसगुल्ला, तो ये स्टेट वाइड है रसगुल्ला। एक बार ये डिबेट भी हुआ था कि बंगाल को मिलेगा जीआई टैग ना उड़ीसा का रसगुल्ला, क्योंकि बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा रसगुल्ला मिष्टी खाते हैं बंगाली लोग, है ना। तो इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हुआ था, तो आपको जानना है ना। केंद्रापड़ा जो है रासाबली जो है, केंद्रापड़ा रासाबली है, फूड प्रोडक्ट है। उड़ीसा रसगुल्ला स्टेट वाइड है। धेनकनाल मगजी है, धेनकनाल मगजी है, ये धेनकनाल डिस्ट्रिक्ट से है। धेनकनाल मगजी ये भी फूड है, धेनकनाल मगजी। सिमिलेपाल काई चटनी, सिमिलेपाल काई चटनी ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से है, उड़ीसा है सिमिलेपाल, है ना। एंड यहाँ पे जो है हैंडीक्राफ्ट की अगर बात करेंगे तो ये जो है चार है, ये फूड प्रोडक्ट हो गया, है ना, फूड प्रोडक्ट हो गया। अगर जो हैंडीक्राफ्ट का बात करेंगे तो कटक, रूपा, ताराक्षी, है ना, ये सिल्वर फिलिग्री है। तो मैंने बता दिया सिल्वर सिटी किसको कहते थे हम, कटक को कहते हैं ना। देखो हमने क्या कहा था, कौन सी सिटी को सिल्वर सिटी कहते हैं, सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कटक को, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर फिलिग्री काम होता था, ताराक्षी वर्क। तो ये जो ताराक्षी वर्क है ना, इसको भी जीआई टैग मिला है, राइट। तो आपको याद रखना है कि ये सिल्वर फिलिग्री जो ताराक्षी है ये कटक से आता है। पिपली एप्लिक, राइट। तो पिपली एप्लिक, जो पिपली एप्लिक वर्क है ये पुरी से आता है, राइट। सो पिपली एप्लिक आपको याद रखना है पुरी से आता है। एंड ये बेसिकली कोणार्क स्टोन कार्विंग जो है, कोणार्क स्टोन कार्विंग ये पुरी में, ये भी पुरी का ही है, राइट। ये भी हैंडीक्राफ्ट है, कोणार्क स्टोन कार्विंग, राइट। सो कोणार्क कोणार्क स्टोन कार्विंग, कोणार्क में जो है ना स्टोन का कार्विंग है, राइट। ये भी यहाँ से फेमस है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कोणार्क स्टोन कार्विंग। एंड जो पताचित्र है, पताचित्र, राइट, पताचित्र ये भी पुरी में पाया जाता है। तो पताचित्र आपने देखा होगा, पेंटिंग है एक, है ना। पताचित्र बंगाल में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा में कटक में जो है पुरी में पाया जाता है ना। पुरी इस ये पताचित्र एक ये पेंटिंग होता है ना, पेंटिंग होता है, डाइवर्स जो है हैंड से क्या हुआ पेंटिंग होता है, तो इसीलिए हैंडीक्राफ्ट माना जाता है, राइट। पताचित्र ये पुरी से है। एंड कप्तंगड़ा जो सॉल होता है, कप्तंगड़ा, राइट, कप्तंगड़ा सॉल ये रायगढ़ एंड कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट से है, रायगढ़ एंड कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट। आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट का याद रखिएगा नाम, है ना, कहाँ से कहाँ क्या पाया जाता है। कबलंगड़ा सौद, है ना। लंजिया सौरा पेंटिंग, लंजिया सौरा पेंटिंग ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, लंजिया सौरा पेंटिंग,
तो याद रखिएगा, मैं रिवीजन करा देता हूँ। फूड प्रोडक्ट में जो केंद्रापड़ा रसाबिल है ना, ओडिशा रसोगुल्ला है, धेनकनाल मगजी है, सिमिलीपाल काई चटनी है ना, काई चटनी है, ये फूड में है। हैंडीक्राफ्ट में कटक रूपा तारकसी है, सिल्वर फिलिग्री वर्क है। पिपली एप्लिक वर्क है, पुरी से है। कोणार्क स्टोन कार्विंग है, पुरी से है। पत्तचित्रा जो है पेंटिंग, ये पुरी से है। कबडागड़ा है ना, कबडंगड़ा ये सॉल है ना, कबडंगड़ा ये रायगढ़ कालाहांडी से है। लांजिया सौरा पेंटिंग ये रायगढ़ से, राइट। तो ये याद रखिएगा हैंडीक्राफ्ट। एंड नाउ टेक्सटाइल्स में आता है। टेक्सटाइल्स में है कोटपड हैंडलूम। कोटपड हैंडलूम जो है ये कहाँ से है, कोरापुट से है। कोटपड हैंडलूम कोरापुट से है ना। संबलपुरी बंदा साड़ी, राइट। संबलपुर में जाओगे तो संबलपुरी साड़ी, इनफैक्ट दिस इज नॉट ओनली फेमस इन ओडिशा, दिस इज फेमस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो संबलपुरी साड़ी भी फेमस है। ये बारगर जो है संबलपुर, बालगर और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से आता है संबलपुर साड़ी। खंडुआ साड़ी है, खंडुआ साड़ी। कटक एंड जो है मनी बंदा, कटक एंड मनी बंदा में ये फेमस है खंडुआ साड़ी। बरामपुर जो पट्टा है, बरामपुर पट्टा ये गंजम में फेमस है। बरामपुर पट्टा, राइट, गंजम में फेमस है। बोमकाई साड़ी जो है, बोमकाई साड़ी बेसिकली ये भी गंजम में फेमस है। बोमकाई साड़ी इज फेमस इन गंजम एंड संबलपुर, ये दो डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। अगेन रिवीजन करा देता हूँ। कोटपट हैंडलूम फैब्रिक कोरापुट, संबलपुरी बंदा साड़ी बारगर एंड संबलपुर, खंडुआ साड़ी एंड कटक एंड मनीबंदा, बरामपुर पट्टा गंजम एंड बोमकाई साड़ी बेसिकली गंजम एंड सुबर्णपुर, राइट। बोमकाई साड़ी गंजम एंड सुबर्णपुर, ये टेक्सटाइल्स है, राइट। टेक्सटाइल्स है। आपको ये कैटेगरी याद रखना है, कौन सी फूड है, कौन से टेक्सटाइल है, कौन सी आपका हैंडीक्राफ्ट है, वेरी राइट। नाउ मूविंग ऑन टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है। कांडमल हल्दी, राइट। कांडमल हल्दी, दिस इज फ्रॉम वेयर, द कांडमल, राइट। सो कांडमल से आता है कांडमल हल्दी, कांडमल डिस्ट्रिक्ट से आता है। कोरापुत काला जीरा राइस, राइट। सो ये काला जीरा जैसे आपने देखे होंगे, काला जीरा उस टाइप का राइस होता है, ब्लैक कलर का, है ना। तो वो काला जीरा टाइप का राइस ये बेसिकली कोरापुत डिस्ट्रिक्ट से आता है ना। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे तो नयागढ़ जो है ना, नयागढ़ केंटाई मुंडी है ना, ब्रिंजल, ये एक ब्रिंजल है ना। केंटाई मुंडी नयागढ़, ये नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। नयागढ़ अगर हटा देंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम जुड़ा हुआ है ना, नयागढ़। कांटाई मुंडी ब्रिंजल है ना, तो आपको जानना है नयागढ़ से है। उड़ीसा खजूरी गुड़ है ना, खजूरी गुड़, उड़ीसा का एक खजूर गुड़ पाया जाता है वहाँ पे, वो भी वहाँ का फेमस है। तो ये भी कहाँ से पाया जाता है, ये गजापति डिस्ट्रिक्ट से पाया जाता है, ठीक है। तो आपको जानना है कंडमल हल्दी, कंडमल हल्दी इनफैक्ट ना कई सारा जो है इंडिया पूरा फेमस है। जो है हल्दी से के नाम से कहीं इंडिया पूरा ऑल ओवर इंडिया ये फेमस है। कोरापुत काला जीरा राइस कोरापुत से है। नयागढ़ कंटाई मुंडी ब्रिंजल ये नयागढ़ से है। उड़ीसा खजूरी गुड़ ये गजापति से है, राइट। सो ये सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। मैं लास्ट में पूरा एक बार रिविजन करा दूंगा। नाउ नेक्स्ट इज द ट्राइबल ग्रुप्स एंड पीवीटीजीज इन ओडिशा, राइट। तो ओडिशा मैंने बताया ट्राइबल ग्रुप्स के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन यहाँ पे ना हमको जानना है कि ओडिशा में जो पीवीटीजीज है, पीवीटीजीज के बारे में थोड़ा जानना है, ठीक है। तो देखो ओडिशा में ना कई सारा पीवीटीजीज है, तो इससे पहले पीवीटीजीज जान लेते हैं। पीवीटीजीज क्या होता है। पीवीटीजीज होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। पीवीटीजीज आर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज अ सब कैटेगरी ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब है इंडिया में अराउंड 700 5 के आसपास, 750 के आसपास, है ना। तो ये शेड्यूल ट्राइब में भी ना जो और ज़्यादा डिप्राइड है, शेड्यूल ट्राइब्स आर ऑलरेडी डिप्राइड, दे हैव द लो लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल काफ़ी कम है उसमें, है ना। फाइनेंशियल लिटरेसी कई सारा चीज़ें कमी है शेड्यूल ट्राइब में। लेकिन शेड्यूल ट्राइब में भी जो कुछ ट्राइब्स है दे आर रियली डिप्राइड, दे लैक मेनी थिंग्स, है ना। तो उस कैटेगरी को और ज़्यादा जो है डिप्राइव्ड कैटेगरी में रखा गया है, सो दैट उसको और ज़्यादा जो है गवर्नमेंट सपोर्ट दे सके, टारगेटेड बेनिफिट्स उसको दे सके। उस कैटेगरी को हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो इन इंडिया दे आर आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, है ना। इंडिया का सबसे जो है सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, डेमोग्राफिकली बैकवर्ड इंडिकेटर्स में उनको रखा गया है। दीज ग्रुप्स बेसिकली रिक्वायर द स्पेशल पॉलिसी, है ना, सो दैट दे कैन बी सपोर्टेड फॉर दैट लाइवलीहुड, एजुकेशन, है ना, एवरीथिंग के लिए उनको सपोर्ट दिया जा सके। तो पीवीटीजीज ना इंडिया में 75 पीवीटीजीज है। देयर आर 75 पीवीटीजीज, ऐसे जो है ना 75 पीवीटीजीज का जो है क्राइटेरिया जो है डिवीजन किया गया है। एंड क्राइटेरिया क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना, तो वो पीवीटीजीज को आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन सम आइडेंटिफिकेशन।
उनके पास होना चाहिए ये जो है 4 क्राइटेरिया, दीज़ 4 क्राइटेरियाज़ आर इम्पोर्टेंट। वो है कि उनके पास जो प्री एग्रीकल्चरल लेवल का टेक्नोलॉजी होना चाहिए, है ना? जैसे कि उनका पास जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, है ना? मॉडर्न हैवी सीडर्स, हार्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, वो सब टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट ही नहीं करते। वो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि देयर इज़ अ ओराओं ट्राइब इन द छोटा नागपुर एरिया, है ना? वो क्या करता है अभी भी कुछ टू सम एक्सटेंट दे गैदर फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, दे प्रैक्टिस हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी करता है, राइट? वो बहुत पहले जो जो स्टोन एज में लोग करते थे ना हंटिंग एंड गैदरिंग, वो अभी भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? सो ओराओं इज वन ऑफ द पीवीटीजीज, ठीक है? तो जो दे हैव द प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूलिथिक टाइम में ना इंडिया में क्या हुआ था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ था, राइट? तो उस टाइम में सेटल्ड होना शुरू कर दिया था, उन लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ पीवीटीजीज है वो न्यूलिथिक से भी पहले का जो है प्रैक्टिस अभी भी करता है ना? दे हैव द प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, refers to communities that depend on hunting, है ना, gathering, primitive subsistence method rather than settled agriculture, ठीक है? तो इंडिया में ना जैसे कि आपने सुने होंगे झूम कल्टीवेशन, राइट? व्हाट इज झूम कल्टीवेशन? झूम कल्टीवेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तो कुछ एरिया में कुछ ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते हैं कि एक जंगल है उसको जला देते हैं, है ना, जला देते हैं, और वो जलाने के बाद जब वहाँ पे आग निभ जाता है तो वहाँ पे वो लोग कल्टीवेशन शुरू कर देता है, दे स्टार्ट कल्टीवेटिंग देयर, है ना? तो वो 2-3 साल वहाँ पे कल्टीवेशन कर देता है, करता है। लेकिन जैसे ही वो कल्टीवेशन करता है 2-3 साल बाद तो उसका तो फर्टिलिटी कम होगा, क्योंकि उन लोग तो फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते हैं, ना कुछ नहीं यूज़ करते हैं। तो उन लोग शिफ्ट होगा दूसरा फॉरेस्ट में, दूसरा फॉरेस्ट भी जला देगा, वहाँ पे करेगा। तो ऐसे उन लोग मूव होते जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड झूम कल्टीवेशन, दे आर प्रैक्टिस्ड बाय सम ऑफ द ट्राइब्स। तो ऐसे करके ना ये बेसिकली दीज़ आर बेसिकली बहुत पहले का जो सिस्टम है अभी भी चलते आ रहा है ना? तो दीज़ टाइप ऑफ ऑफ द फार्मिंग एटसेट्रा आर प्रैक्टिस इन सम कम्युनिटीज़। तो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए उसके पास, लो लेवल लिटरेसी होना चाहिए, एक्सट्रीमली पुअर एजुकेशनल अटेनमेंट होना चाहिए कंपेयर्ड टू ट्राइबल ग्रुप्स, है ना? तो एजुकेशनल लिटरेसी भी काफ़ी कम होना चाहिए, इवन लोअर देन द मेजर ट्राइब्स, ठीक है? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए यहाँ पे इस ग्रुप में, है ना? तो सब्सिस्टेंस लेवल मीन्स, तो आज उन लोग ने जो है फसल उगाया, है ना? दे ओनली डू दैट फॉर कंज्यूमिंग, ठीक है? फॉर इंस्टेंस इफ सम ट्राइब्स आर कल्टिवेटिंग राइस, they eat that rice, they cultivate rice only for the eating purpose, not for the selling purpose। मार्केटिंग लिए यूज नहीं करता, बस खाने के लिए वो खुद को सर्वाइव करने के लिए यूज करता है, राइट? तो दैट काइंड ऑफ सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस, है ना? मिनिमम लेवल ऑफ मॉडर्न जो मार्केट है, इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे। डिक्लाइनिंग एंड स्टेगनेंट पॉपुलेशन होता है, रिफ्लेक्ट्स अ डेमोग्राफिक ट्रेंड वेयर द पॉपुलेशन ग्रोथ इज ईदर वेरी लो और नेगेटिव, ठीक है? तो इस जो पीवीटीजीज का और एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया कि इसका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए, नेगेटिव जो है पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब होना चाहिए, ठीक है? तो आपको याद रखना है क्राइटेरिया, राइट? कि प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड डिक्लाइनिंग स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ये क्राइटेरिया किसने दिया था? इंडिया में एक कमीशन बना था, उसका नाम है यूएन धेवार कमीशन, ठीक है? तो ये धेवार कमीशन 1960-61 में बना था, राइट? तो इंडिया में ना पीवीटीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नाम याद रखना है, यूएन धेवार कमीशन, राइट? यूएन धेवार कमीशन। तो ये कमीशन बनाया था, तो इन्होंने ये पीवीटीसीज का आइडेंटिफाई किया था, है ना? तो सर्टेन लेवल ऑफ जो कम्युनिटीज है ना, दे लैग सिग्निफिकेंटली बिहाइंड अदर्स इन डेवलपमेंट, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये डेवलप किया गया था, ठीक है? तो 1975 में बेसिकली क्या किया गया था कि दीज ग्रुप्स वर ऑफिशियली कैटेगराइज एंड पीपीटीजीज, ठीक है? तो ये ग्रुप को 1975 में स्पेसिफिकली जो है पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली ट्राइबल, पहले इनका नाम पीवीटीजीज नहीं था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप नहीं था पहले, बाद में इसका नाम पीवीटीजीज रखा गया था। शुरू में इसका नाम था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, पहले इसका नाम था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, बाद में ये बना पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, है ना? 2006 में इसका नाम चेंज करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रखा गया, टू अडॉप्ट द मोर सेंसिटिव एंड नो इंक्लूसिव टर्मिनोलॉजी, राइट? तो आपको ये चीज याद रखना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर एंड नंबर्स का अगर बात करेंगे, देर आर 75 पीवीटीजीज इन इंडिया, मैंने बता दिया अभी इंडिया में 75 पीवीटीजीज है। उसमें से जो है दीज ग्रुप्स आर स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स, 18 स्टेट्स में पाया जाता है ना, 18 स्टेट्स में ये पीवीटीसीज पाया जाता है। एंड उसमें से जो है अंडमान एंड निकोबार जो है टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, वो भी इंक्लूडेड है ना? 18 स्टेट्स प्लस अंडमान एंड निकोबार में ये पाया जाता है,
है ना, 75 पीवीटीज। एंड यहाँ पे ना मैं पीवीटीज को क्यों फोकस कर रहा हूँ पता है, क्योंकि ना उड़ीसा में इंडिया का सबसे ज्यादा पीवीटीज का कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। सबसे ज्यादा पीवीटीज 75 में से उड़ीसा में ही है ना। यहाँ पे 75 पीवीटीज में जो है 13 उड़ीसा से ही है, राइट। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उड़ीसा के बाद आंध्रा में पाया जाता है, जहां पे आंध्रा में 12 पाया जाता है, ठीक है। तो ये उड़ीसा में है और आंध्रा में 12 जो है पीवीटीजीज पाया जाता है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग नाउ। अब देख लेते हैं पीवीटीजीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द agriculture prospective there the development of the PVTGs है ना, ट्राइबल वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, टारगेटेड इंटरवेंशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एंड बेसिकली ये सोशल जस्टिस वल्नरेबल सेक्शंस गवर्नमेंट स्कीम्स में इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना। 62 कम्युनिटीज उड़ीसा में देखो, ट्राइबल्स भी कम्युनिटीज भी काफी ज्यादा है। उड़ीसा में टोटल 62 ट्राइबल कम्युनिटीज है, राइट। 62 ट्राइबल कम्युनिटीज, वेरी लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन इज देयर इन ओडिशा, ठीक है। एंड 62 ट्राइबल कम्युनिटीज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट 22.8%, right, one almost more than 1/5 of total population of Odisha is are basically tribes, ठीक है। एंड these are out of these, है ना, 62 में 13 जो है पीवीटीजीज है, मोस्ट डिप्राइव्ड कैटेगरीज, राइट। तो दिस इज द थिंग दैट यू शुड बी नोइंग। नाउ लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज, ओडिशा में क्या क्या पीवीटीजीज है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो ओडिशा में बोंडा ट्राइब है, बोंडा ट्राइब नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बोंडा ट्राइब। डोंगारिया कोंड रायगढ़ एंड कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में आता है डोंगारिया कोंड, राइट। डोंगारिया कोंड इस चीज के लिए भी फेमस थे। एक बार उड़ीसा में वेदांत का जो है फैक्ट्री लगने वाला था, वेदांत का जो है फैक्ट्री लगने वाला था। तो आपने सुने होंगे, इफ यू आर ऑब्वियसली वाचिंग फ्रॉम ओडिशा, है ना। तो देखो वेदांत का माइन लगने वाला था, एल्यूमिनियम का कुछ माइन। तो उसमें ना डोंगारिया कोंड जो है ट्राइब अफेक्ट होने वाला था, क्योंकि वहाँ पे उनका डिस्प्लेसमेंट होने वाला था, फॉरेस्ट क्लियर होने वाला था, है ना, वेदांता द्वारा। तो डोंगारिया कोंड ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, है ना, अगेंस्ट द वेदांता। तो बाद में डोंगारिया कोंड का जो जो ग्राम सभा है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट दिस, एंड जो है वेदांता के अगेंस्ट उन्होंने शायद जीता, राइट। तो डोंगारिया कोंड इसीलिए पूरा नेशनल न्यूज़ में आया था, जो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए, है ना। एंड ये बेसिकली रायगढ़ एंड कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज लंजिया सौड़ा बेसिकली ये गजापति एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, गजापति एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जुआंग ट्राइब ये क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में है, जुआंग ट्राइब, राइट, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में। पौड़ी भुयान, राइट, पौड़ी भुयान ये क्योंझार एंड सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, पौजी भुयान, राइट। कुटियाकोंड खंडरमल, राइट, कुटियाकोंड खंडरमल डिस्ट्रिक्ट में है, कुटियाकोंड खंडरमल। कोंड जो है, कोंड बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, नहीं, लोधा जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, लोधा मयूर। कुटियाकोंड कंडमल में है। दिदाई मलकानगिरी में लोकेटेड है, दिदाई कहाँ पे, मलकानगिरी में लोकेटेड। हिलखरिया ट्राइब मयूरभंज में लोकेटेड है, हिलखरिया इज लोकेटेड इन मयूरभंज, राइट, हिलखरिया। एंड मनकीडिया जो है, मनकीडिया ये मयूरभंज में लोकेटेड है, मनकीडिया भी मयूरभंज में लोकेटेड है। एंड जो बिरहोर है, बिरहोर दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन मयूरभंज सुंदरगढ़, है ना। तो आपको जानना है मयूरभंज एंड सुंदरगढ़ में क्या लोकेटेड है, बिरहोर ट्राइब्स लोकेटेड है। एंड जो चुक्तिया जो भुंजिया है, चुक्तिया भुंजिया ये नौपाड़ा में लोकेटेड है, राइट, चुक्तिया भुंजिया नौपाड़ा में लोकेटेड है। सौरा जो है, सौरा गजापति जो पुरी में लोकेटेड है, राइट। सो आपको जानना है सौरा ट्राइब, है ना, सौरा ट्राइब, चुतकिया भुंजिया, है ना, चुतकिया भुंजिया। तो लिस्ट आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। बोंडा ट्राइब है, डोंगारिया कोंड है, लंजिया ट्राइब सौरा है, जुआंग है, पौडी भुयान है, कुतिया कोंड है, लोदा है ना, दिदाई है, लोदा दिदाई। हिलखरिया ट्राइब है, मयूरभंज में है ना। मनकीडिया है, मयूरभंज में लोकेटेड है। तो मयूरभंज में दो ट्राइब यहाँ पे पीवीटीजीज दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। तो हिलखरिया है और एक है मनकीडिया। एंड बिरहोर है, राइट, मयूरभंज में है ये भी, ठीक है। बिरहोर में 3 दिखाई दे रहा है मुझे तो इनफैक्ट, है ना। यहाँ पे चुटकिया है, चुटकिया भुंजिया एंड सौरा ट्राइब, राइट। सो दीज आर द पीवीटीजीज विच आर फाउंड इन द आपको ओडिशा, राइट। सो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग पीवीटीजीज आर फाउंड इन इंडिया, है ना। तो पीवीटीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और भी जो है ट्राइब्स, है ना, ट्राइब्स के बारे में भी हम पढ़ने का कोशिश करेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या क्या ट्राइब है ना। तो यहाँ पे मैं क्विकली रिविजन करा देता हूँ।
देखो हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में हमने जो है उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़े। उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे 3 जो है रेवेन्यू डिविजन्स में डिवाइड किया गया है ना, 30 डिस्ट्रिक्ट को। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे रेवेन्यू डिविजन से नीचे तहसील्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे तहसील्स के बाद यहाँ पे जो है और नीचे जो है डिविजन्स है यहाँ पे, है ना। उड़ीसा लोकेटेड ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है, 30 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे 3 रेवेन्यू डिविजन, 30 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड 58 जो है यहाँ पे सब डिविजन लोकेटेड है। मैंने बताया 58 सब डिविजन। यहाँ पे 17 जो है 300 जो है 317 तहसील्स है ना। 314 यहाँ पे जो है ब्लॉक है, 314 ब्लॉक है यहाँ पे, है ना। अगर रेवेन्यू डिवीजन का बात करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर जो है यहाँ का रेवेन्यू डिवीजन को हेड करता है। सीनियर ऑफिशियल जो आईएएस का सीनियर ऑफिशियल रहता है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेज्ड बाय कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पे डीएम मजिस्ट्रेट करता है ना, जो आईएएस का ऑफिसर होता है। तो रेवेन्यू डिवीजन में ये होता है, डिस्ट्रिक्ट में ये होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का अगर डीप में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, सब डिविजन में डिवाइडेड है, सब कलेक्टर रहता है, सब डिविजन में सब कलेक्टर रहता है, राइट। तो ये सब हमने डेटा देख लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने देखे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है ना, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, रेवेन्यू डिवीजन जो है उसका हेडक्वार्टर क्या है, कौन कौन से डिवीजन इंपॉर्टेंट है ना। 3 डिवीजन मैंने, नॉर्दर्न डिवीजन हेडक्वार्टर संबलपुर में है, सेंट्रल डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है कटक में है। जो नॉर्दर्न डिवीजन में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट आता है, अंगुल, बालांगीर, बारगढ़, देवगढ़, धेनकनाल, झारसुगुड़ा, है ना, झारसुगुड़ा, केंदुआ, झार, राइट, संबलपुर, सुबर्णपुर एंड सुंदरगढ़। ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स कम्स अंडर द द नॉर्दर्न डिवीजन मैंने बताया यहाँ पे। उसके बाद सेंट्रल डिवीजन का मैंने बात किया, यहाँ पे हेडक्वार्टर कटक में है, राइट। ये सब डिस्ट्रिक्ट उसमें आता है। सदर्न डिवीजन मैंने के बारे में बात किया, बरहामपुर में लोकेटेड है, बरहामपुर, है ना, इसका हेडक्वार्टर। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट है इसमें। एंड उसके बाद उड़ीसा में बेसिकली कब फॉर्म हुआ था, शुरू में 6 था, उसके बाद जो है 7 नया डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया, है ना। तो उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 में फॉर्म हुआ था। उत्कल डे भी मनाया जाता है 1 अप्रैल में, है ना। तो 6 उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद 7 नया डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया। उसके बाद 1993 में जो है मेजर रिसफल हुआ, 13 ऐड किया गया। टोटल अभी 30 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन और भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाने का प्लान चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने बताया फुलबनी, कंडमल डिस्ट्रिक्ट का पहला नाम फुलबनी हुआ करता था। ये सब डिस्ट्रिक्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐड किया गया था। उसके बाद और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया था 1993 में, है ना। और ये मैंने बताया ये नॉर्दर्न डिवीजन है, ये सेंट्रल डिवीजन है ना, एंड ये सदर्न डिवीजन है, उड़ीसा का रेवेन्यू डिवीजन, ठीक है। एंड अगर की डिस्ट्रिक्ट का फैक्ट बात करेंगे तो मयूरभंज यहाँ का जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे जगत सिंहपुर है, राइट। जगत सिंहपुर यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। गंजम यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे गंजम में पाया जाता है। डियोगढ़ लोएस्ट पॉपुलेशन है। कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में है, खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में है ना। एंड कैपिटल पहले कटक में हुआ करता था, राइट। नाउ उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट का अपना हेडक्वार्टर मैंने बता दिया था। अंगुल का अंगुल है, बालांगीर का बालांगीर है, तो सभी का सेम ही है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जिसका नाम जो है अलग है, हेडक्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम। आपको वो चीज जानना है, जैसे कि गजापटे, है ना, गजापति का लेखे मुंडी, राइट, परालेखा मुंडी गजापति का है। एंड गंजम का जो है चित्रपुर है, जसपुर का जसपुर है, ये सब सेम है ना। कालाहांडी का भावनी पटना है, कालाहांडी का भावनी पटना है। कंडमल का जो है उसका पहला नाम, है ना, कंडमल का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम, उसका पहला नाम फूलबनी है, राइट। तो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे जो है चीज़ें आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने बात किया, राइट, कंडमल है, कंडमल का फूलबनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे बाकी जो यहाँ पे ना सेम डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम और हेडक्वार्टर सेम है, वो याद रखने का जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका थोड़ा अलग नाम है वो याद रखिएगा, है ना। खोर्धा का खोर्धा ही है, कोरापुत का कोरापुत ही है, मलकानगिरी का मलकानगिरी है, मयूरभंज का बारीपड़ा है, मयूरभंज का बारीपड़ा है ना। एंड नयागढ़ का नयागढ़ ही है, नोआपड़ा का नोआपड़ा ही है, पुरी का पुरी है, रायगढ़ का रायगढ़ ही है ना। एंड सुबर्णपुर का सुबर्णपुर है। बाकी सभी का नाम है। कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर अलग है, जैसे कि यहाँ पे मयूरभंज का है बारीपड़ा, है ना। यहाँ के कंदमल का फूलबनी है। एंड कालाहांडी का भावनीपड़ा है, भावनीपटना है, राइट। तो ये सब जो है गंजम का छत्रपुर है, गजापति का है पारालेख मुंडी, राइट। तो ये सब जो है नाम जिसका अलग है वही आप याद रख लेगा भेजेगा, ठीक है। तो मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस कर लिया। यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे सबसे कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है वो भी मैंने
बता दिया। खोर्धा में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि ये इसमें कैपिटल सिटी लोकेटेड है ना, उड़ीसा का। ठीक है। एंड जो नया डिस्ट्रिक्ट है, प्रपोज डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है वो भी मैंने डिस्ट्रिक्ट किया, किसको ब्रेक करके क्या क्या बनाने का प्लान चल रहा है ना, वो भी मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया। आप याद रख लीजिएगा, ये सब नाम है ना पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस किया। ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में मैंने 30 डिस्ट्रिक्ट, उसका रेवेन्यू डिविजन्स है ना, सभी रेवेन्यू जो डिविजन है उसका हेडक्वार्टर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में मैंने बात किया, उसका फंक्शंस है उसके बारे में डिस्कस किया। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स में मैंने बताया अंगुल जो है ये इंडस्ट्रियल हब है, नैल्को एंड एनटीपीसी यहाँ पे है ना। कोल रिजर्व एंड माइनिंग एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे। ब्राह्मणी महानदी ये रिवर फ्लो होता है। पौडी भुयान एंड हो ट्राइब यहाँ पे पाया जाता है अंगुल में। बालासोर के बारे में मैंने बताया, ये सदर सेंट्रल डिवीजन में है ना। यहाँ पे बालासोर में आईटीआर चंदीपुर जो है मिसाइल टेस्टिंग लोकेशन यहाँ पे है। मैरीटाइम ट्रेड एंड कोस्टल एक्टिविटीज के लिए फेमस है बालासोर यहाँ पे है ना। सुवर्ण रेखा एंड बूढ़ा बालागंगा राइट, बूढ़ा बालंगा रिवर यहाँ पे फ्लो होता है। मेजर ट्राइब का अगर बात करेंगे तो सांथल है ना, कोल्हा एंड हो यहाँ पे जो है मेजर ट्राइब है, सांथाल कोल्हा एंड हो ट्राइब्स। बारगढ़ का अगर बात करेंगे ये नदर्न डिवीजन में है राइट। सो दिस इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया ओडिशा राइट। सो बारगढ़ इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ ओडिशा एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द हैंडलूम इंडस्ट्री राइट। सो जो ये नदर्न डिवीजन में बारगढ़ है, दिस इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ ओडिशा, हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए। महानदी एंड जीरा यहाँ पे फ्लो होता है। मेजर ट्राइब नो बिंझल एंड सहारा ट्राइब है, बिंझल एंड सहारा ट्राइब। कटक सेंट्रल डिवीजन में लोकेटेड है राइट। ये सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिल्वर फिलिग्री जो है इसके लिए फेमस है यहाँ पे है ना। कैपिटल ऑफ फॉर्मर कैपिटल हुआ करता था। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव हब यहाँ पे, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हब यहीं पे। महानदी एंड ना कथा महानदी एंड कथा जोड़ी राइट, ये रिवर फ्लो होता है। मुंडा एंड ओडाओ ट्राइब यहाँ पे पाया जाता है। गंजम सदर्न डिवीजन में है। सिल्क सिटी कहा जाता है, बोरहामपुर यहाँ पे लोकेटेड है ना, काफी इंपॉर्टेंट सिल्क सिटी है। ऋषिकुल्या एंड बहुडा रिवर यहाँ से फ्लो होता है ठीक है, गंजम से। एंड मेजर ट्राइब सावरा, परोजा एंड भूमिया ट्राइब यहाँ पे पाया जाता है। कालाहंडी सदर्न डिवीजन में है। बॉक्साइट रिजर्व से फेमस के रिलेटेड फेमस है ना। एंड यहाँ पे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट है ये। उसके बाद यहाँ पे कुटिया कोंड एंड भुटाडा ट्राइब पाया जाता है। इंद्रवती एंड नागवली रिवर यहाँ से फ्लो होता है ठीक है। उसके बाद कंडमल, हमने सदर्न डिवीजन का बात किया था, यहाँ पे कॉफी एंड टर्मरिक कल्टीवेशन के से जाना जाता है। कश्मीर ऑफ उड़ीसा भी जाना जाता है। कंडमल के याद रखिएगा है ना, कंडमल कश्मीर है ना, कश्मीर ऑफ उड़ीसा से नाम से जाना जाता है। ऋषिकुल्या एंड सालुंकी रिवर यहाँ से फ्लो होता है। मेजर ट्राइब कोंद जैसे कि कुटिया कोंड एंड डुंगारिया कोंद यहाँ से पाया जाता है। क्योंझार है ये नदर्न डिवीजन में है। लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है ना। बैतरानी रिवर यहाँ पे फ्लो होता है। मेजर ट्राइब्स जुआंग है, भुयान है, सांताल है ना। नेक्स्ट इज द खोर्धा जो सेंट्रल डिवीजन में लोकेटेड है ना। स्टेट जो है स्टेट कैपिटल है खोर्धा, इज द स्टेट कैपिटल ऑफ भुवनेश्वर है ना। एंड मेजर जो सेंटर है यहाँ पे आईटी जो है एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेजर सेंटर है खोर्धा। यहाँ पे ना कखाई रिवर एंड दया रिवर है ना, इंस्पेक्टर दया का जो रिवर है यहाँ पे फ्लो होता है। मेजर ट्राइब से सौरा है, मुंडा है ठीक है। कोरापुत सदर्न डिवीजन में है। नालको यहाँ पे पाया जाता है। हाल जो है सुनाबेड़ा में हाल लोकेटेड है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नालको दमन जोड़ी में यहाँ पे है ठीक है। ये ट्राइबल रीजन है कोरापुत, यहाँ पे परोजा, गडाबा एंड बोंडा ट्राइब पाया जाता है। कोलाब एंड इंद्रावती रिवर फ्लो होता है। मयूरभंज सेंट्रल डिवीजन में है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज है। सिमिलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी मयूरभंज में पाया जाता है। मेजर रिवर का अगर बात करेंगे तो जो ना बूढ़ा बालंगा एंड वैतरानी जो है ये मेजर रिवर है यहाँ पे पाया जाता है। मेजर ट्राइब का अगर बात करेंगे तो सांथाल, कोल्हा एंड लोधा आर द मेजर ट्राइब्स ऑफ द मयूरभंज ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग। एंड पूरी ये जगन्नाथ टेम्पल के लिए फेमस है ना, जगन्नाथ टेम्पल के लिए। टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट है ना, भार्गवी एंड दया रिवर यहाँ से फ्लो होता है। सौरा ट्राइब पाया जाता है। रायगढ़ सदर्न डिवीजन में है। पेपर एंड फेरो मैग्नीज इंडस्ट्री के लिए फेमस है ना। तो मैं थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ा ये रिवीजन है ना, मैं 5-6 मिनट में जो है लास्ट में कोई भी सभी जो लेक्चर के बाद मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि ना आप जब भी कोई भी लेक्चर करोगे एक बार सरासर करने से नहीं होगा उसका, एक बार रिवीजन मैं 5-6 मिनट में अगर करा देता हूँ ना तो आपका ये क्विक रिवीजन हो जाएगा, सो दैट यू कैन नो रिकॉल थिंग्स ठीक है। तो देखो मेजर रिवर्स यहाँ पे
बंसधारा एंड नयाबली है रायगढ़ में, एंड लंजिया साहोरा एंड डोंगारिया कोंड ट्राइब पाया जाता है। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है। सुंदरगढ़ में रोड के जो है स्टील प्लांट सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टैब्लिश किया गया था। मिनरल एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज काफी पाया जाता है यहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे मेजर रिवर्स जो है ब्राह्मणी एंड ईव रिवर है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, है ना। मेजर ट्राइब्स ओराव, मुंडा एंड किसन ट्राइब यहाँ पे पाया जाता है, राइट। एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ जो ओडिशा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओडिशा में 25 जो जीआई टैग्स है अभी तक, है ना। फूड, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। केंद्रपाड़ा रासा बली है फूड प्रोडक्ट्स में, केंद्रपाड़ा रासा बली। ओडिशा रसगुल्ला है, धेनकनाल मगजी है, एंड सिमिलीपाल काई चटनी है, राइट। सो ये फूड में आता है। 4 है। हैंडीक्राफ्ट में कटक रूपा ताराकसी सिल्वर फिलिग्री है कटक का, है ना। पिपली एप्लिक वर्क है, कोणार्क स्टोन जो कार्विंग है, पत्ता चित्र पेंटिंग्स है, एंड जो है कपड़ागड़ा जो सॉल है यहाँ पे, है ना, रायगढ़ का। एंड जो है लंगजिया सौरा पेंटिंग, ये बेसिकली हैंडीक्राफ्ट है यहाँ का। एंड अगर टेक्सटाइल का बात करेंगे तो कोटपट हैंडलूम फैब्रिक है यहाँ का, कोटपट हैंडलूम फैब्रिक। संबलपुरी बंडा साड़ी है ना, संबलपुरी बंडा साड़ी। एंड खंडुआ साड़ी है, कटक से आता है। बहरामपुर पट्टा है ना, एंड बोमकाई साड़ी है, राइट। सो दीज आर द साड़ीज विच आर द टेक्सटाइल। सो बोमकाई, बहरामपुर पट्टा, कंडुआ साड़ी, संबलपुरी बंडा साड़ी, एंड कोटपट हैंडलूम, है ना। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का बात करेंगे तो खोंडामल हल्दी है, कंडामाल हल्दी है, कोरापुट काला जीरा है, नयागढ़ कटेन मुंडी, है ना, ब्रिंजल है यहाँ का। एंड ओडिशा जो है खजूरी गुड़ यहाँ का है, राइट, गजापति का। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में है। पीबीटीसीज के बारे में मैंने बात किया था, है ना। पीबीटीसीज इंडिया में 75 पीबीटीसीज है, सबसे वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। 4 कैटेगरीज है पीपीटीसीज का, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स का। प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, है ना, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एंड द डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन। ये 4 क्राइटेरिया आप याद रखिए। हिस्टोरिकल अगर देखेंगे तो यूएन देवार कमीशन जो है पीबीटीसीज का नाम सजेस्ट किया था, इन्होंने रिकॉग्नाइज करने के लिए बताया था, है ना। पहला इसका नाम हुआ करता था पर्टिकुलरली पीटीजी हुआ करता था इसका नाम, है ना, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। बाद में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बनाया गया, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर बात करेंगे तो इंडिया में 75 पीबीटीजीज है, राइट। एंड ये बेसिकली कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, 8 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ओडिशा हैज हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीबीटीजीज, ठीक है, 13 पीबीटीजीज यहाँ पे पाया जाता है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश विच हैव द 12 ग्रुप्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है। एंड सिग्निफिकेंस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओडिशा में सबसे ज़्यादा जो है पीबीटीजीज पाया जाता है। एंड जो है उड़ीसा में ट्राइबल ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा है, इतना छोटा स्टेट में 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ पाया जाता है, जिसमें से 2.8% ऑलमोस्ट 23% जो है उड़ीसा का टोटल स्टेट का पॉपुलेशन का ट्राइबल ग्रुप कंट्रीब्यूट करता है ना। यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ पीबीटीजीज है आपको याद रखना है ना। जो है बोंडा डोंगारिया कोंड, लंजिया सौरा, जुआंग, है ना, पौड़ी भुयान, कुटिया कोंड, लोधा, डिडाई, हिलखरिया, मनकिडिया एंड मनकिडिया, है ना, मनकिडिया, बिरहोर, चुटकिया भुंजिया, है ना, चुटकिया भुंजिया एंड सौरा, राइट। सो बोंडा डोंगारिया कोंड, लंजिया सौड़ा, जुआंग, है ना, पौड़ी भुयान, कुटिया कोंड, लोधा, दिदाई, हिलखरिया, मनकिडिया, बिरहोर, चुटकिया भुंजिया and Sora, right? So these are the names of the PBTGs that you should be remembering, right? So these were the important things that I covered from the district profiles of the Odisha, right? So district profiles में इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछा जाएगा। और भी बाकी चीज़ें हैं जैसे कि जो फिजिकल जो फीचर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एटसेट्रा, राइट, डिविजन्स एटसेट्रा, विल डिस्कस दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज होने वाला है, राइट। सो आफ्टर दिस विल बी डिस्कसिंग द एमसीक्यूज, यहाँ से क्या क्या एमसीक्यू आ सकता है, किस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। 10 एमसीक्यू सभी वीडियो और सभी लेक्चर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग नाउ। I think with this much, I hope this district profile is clear to you. If you have any doubts, you can always reach out to me, through the management. So having said that, I'm concluding this session. We'll meet again in the next video. Keep preparing for the exam. Thank you so much. Jai Hind.